Alaikum everybody, and thank you for coming here for a book launch of Ali Ahmed Kasmi's Qaum Mulk Sultanate. Okay, I think if someone gives me about 4 hours for a session on this book, I won't be able to sort of cover the content in this. It is so dense and so detailed, like most of Ali's books. This is his third book, and unfortunately, one of them is not available in Pakistan. And some point in time, I would like to talk about that as well. So, before I start, this book is about citizenship, something we take for granted, and a lot of people think that this idea of citizenship or nationalism or nation state is thousands of years old. It was always there, but as we know, it's most probably not older than 300 years. So we will be talking about Ali's ideas, how he's explored this concept, especially in the context of what is called the Indo-Pakistan subcontinent, India and Pakistan, and to a certain extent Bangladesh. With us on the panel is Martin Achman. He specializes in also in studying nation building, nationalism, the nation state, and more interestingly, what is called subnationalisms. So we will be talking about that as well. Huma Ghaffar, she's not a historian, but she writes how history is written and what impact that can have on academics, intellectuals, and people at large, how you write history. And we'll be talking to her as well. I've just started to read her book. So Ali, I'll start off not with a question, but I'll start off with something a story you've mentioned right in the onset of the book, which might contextualize exactly the kind of confusion that was created when partition happened between Hindu Muslims and India and Pakistan. It reminded me of something what Manto wrote in Toba Tek Singh about a mental hospital, and one of the patients didn't know where he belonged. He's been living here for thousands of years and didn't know how can you have two people now, half of the hospital, or there was a tree, half of it was in Pakistan suddenly and half of it was in India. So I'll ask to tell us a story which I had totally forgotten, but like you always do in your books, you come up with information and sources from archives which are there to be found, but people just ignore them. But I thought that story emphasizes and manifests brilliantly the kind of confusion that was created, psychological confusion, political confusion, sense of belonging, and people got confused by their identity when Pakistan was made and India became different. Tell us the story of Salma Agha, which you have written here right at the onset of the book in the intro. Yeah, thank you so much for this very generous introduction. So the book begins with the story about a man called J.K. Mehra. J.K. Mehra was the station director of Lahore Radio, and at the time of partition, he wanted to stay back, and like so many other people, thousands of Hindus and Sikhs who were on the wrong side of the border in West Punjab. But the only way he could have stayed back alive was to convert to Islam. And hence he made a public announcement saying that now that I have converted to Islam, he went to the Khatib of the Badshahi Mosque and declared that he has become a Muslim, and his new name was to be Ahmad Suleiman. Now, the story does not end here. Mehra Suleiman's step-granddaughter was Salma Agha. Now, Salma Agha was, as we know, she is a quote-unquote Pakistani actress. But she spent a lot of her time, doing films in India as well, and she grew up, spent part of her life in UK.
But when she wanted to finally move to Bombay and to settle down there, she wrote an application and to get citizenship, Indian citizenship, claiming that her grandfather was a Hindu. Right? So for her grandfather to stay in Pakistan, he had to say that I have become a Muslim. For her granddaughter to move to India and claim Indian citizenship, she had to say that her grandfather was a Hindu, and hence to establish that kind of an ancestry. And also it is indicative of the changes in the in India's citizenship law, which now privilege one's religious identity as a Hindu or a Sikh. So that, I think, as you pointed out, sums up. And mind you, this is not the only story of conversion. This is perhaps one of the more known stories of conversion. But across Punjab, there were thousands of people. There's an official figure of at least 70,000 people who converted at the time of partition because they wanted to stay back, because they said, we have our property here, shops and everything. And so that's a separate project altogether. But yeah, I thought this would help understand that it's not just a legal claim that you can make to the state as its citizens. You also have to belong to the nation, which, in my opinion, it's inherently a majoritarian project. And this is why Mehra or Suleiman, he had to, in order to become a Pakistani, he had to be a Muslim as well. Thanks. You see, citizenship is a project of modernity and colonialism. That's what I got from your book, basically. Now, all your books, including this one, you always concentrate on a community or communities trying to come to terms with modernity, which is alien to them most of the times, but at the same time trying to retain a pre-modern identity. And it is that tussle. So is this a problem? And we know, and you've written about it, that the confusion it caused, the disruption it caused on a psychological level, political level. If this is a problem, what is the solution to this problem? Like, for example, what I'm trying to say is that there was a reaction against modernity from the 19th century onwards in this region, and we saw two responses. One was saying, oh, we have to go back 1400 years and adopt the authentic Islam. And the other was the Sir Sayyid Khans and Chirag Alis, that we have to be modern because Islam is inherently modern. But we've seen over the years, over the decades, that these responses haven't quite been challenged, that the idea of nationalism and modern and citizenship in this region. Is this really a problem that needs to be resolved, or do we need to just, keep on doing what we're doing, fusing? Like, for example, you talk about, or Weber talks about, there's one thing called spiritual citizenship and worldly citizenship. Maybe we were always trying to create a fusion, to create a citizen, which we have failed. Yeah, I mean, that's a complex question. I would say that there is that part of the problem is as to how these pre-political organic communities and how we want to transform them into and make them compatible with some modern political ideas, right? That includes nation, that includes citizen, and this is where I think this is what the project is about, that there is the kind of like primordiality, so to speak, but how do we draw upon that vast, complex, symbolic, cultural repertoire in order to craft or imagine a sense of identity? So the problem which I see, and I think the problem which you also identify, is the flattening of this complexity and where it becomes a statist hegemonic project to craft a singular kind of identity, right? And this is which is essentially a very modern project, as you have pointed out. So
So in a way, I mean, my answer to that question would be that there is, and especially in the context of the 1950s, where I'm mostly focusing my argument, that there was this moment of, there was a post-colonial moment, there was a possibility of thinking about new things, new themes, political ideologies, political subjectivities. And perhaps that was the moment where one could have, and where people were coming together to articulate their aspirations for these newer forms of political subjectivities, while drawing upon whatever they thought was the basis of their, these pre-political organic repertoire, right? So the confusion arises, or the problem arises, when the state sort of enforces a more hegemonic kind of an account at the expense of this more fluid, complex tradition, which could have been more inclusive or more accommodative of diversity, and could have, in fact, been more pluralistic. So rather than being along the binary of conservative or modern or secular or religious, this kind of ambiguity could have been more productive, in my opinion. Thanks. This gets me, Martin. When Ali talks about this majoritarian idea of citizenship, one of the responses, and this is where you've written a lot on sub-nationalisms in this region, especially in Pakistan and India, and the book I read, it is basically on Baloch nationalism, how the roots of Baloch nationalism, for example. But if nationalism was a Western project, was a colonial project, or idea, let's say, if not a project, then what is subnationalism as a response? Like, for example, subnational, we have a meta-narrative of a Pakistani nationalism, which is being developing. And within that, as a response, who don't agree with that nationalism are your Baloch nationalists, your Sindhi nationalists, your Pashtun nationalists. So what is subnationalism? Is it equally a colonial idea, or a European idea, or a modern idea? Well, I do agree that nationalism is a very modern idea, but I would not call it a colonial project. Nation states became the principal organizational setup throughout the world. Can you speak a bit loudly, please? The world was divided into nation states. It's basically something that happened at the end of colonialism. It is a European idea, but I think it got worldwide popularity at the end of colonialism. I think what is really important to know and to understand, that nations are nothing natural and not God-given. It is something that is made, created, actually invented. And it's often said that a nation is an imagined community. And I think this book is an exceptional study on how the Pakistani nation was actually made, formed, and created. And I think Pakistan is a very particular case, because here the state preceded the nation. And of course, a nation is never a static project. And again, the case of Pakistan, you all know, in 1971, the Pakistani nation divided into two nations, in the Bangladesh and Pakistan. And of course, there is basically no end to nations. A nation is a rather random association of people who feel they belong together. And there could be many more nations and nation states than we see today in the world. And of course, existing nation states can break up into smaller units, because smaller identities also develop national aspirations. And I think that is the case in Balochistan. In fact, in Balochistan, according to my reading, feelings of being a nation actually preceded the Pakistan movement.
the first national feelings sort of arose in the 1920s when no one was actually speaking about Pakistan yet. I agree, that's true. And this is the time when we start talking about, saw the emergence of Hindu nationalism eventually, and Muslim nationalism, and so on and so forth, and then later on Pashtun nationalism. And like, for example, the Pashtun nationalist Wali Khan used to say that thousands of years ago he was a Pashtun, and 1400 years ago he became Muslim, and was only a few decades he's been a Pakistani. You know, so basically, what I was saying was, I was talking about responses. Like you say, of course, nation states emerge, nationalism emerge, and then they splinter and break off. But, okay, you're saying it's not a colonial project, and I agree with you, but it's still a Western idea, nationalism, right? And like I was talking to Ali right now, there were two kinds of responses to this sort of nationalism. There was the so-called Islamist or Islamic response, where they said, okay, we will have nothing to do with this idea. Like Maududi, for example, he hated the whole idea of nation state and nationalism. You know, he was talking about creating a more, or recreating a state which existed, or is an imagined state. That was an imagined state as well, 1400 years ago. So my thing was that, since you've done so much on subnationalisms, at this point in time, it is, I think, my observation that Pashtun nationalism, and I would like to ask you, because you've done a lot of field work on this, is Pashtun nationalism like the only nationalism I see existing at this point in time in Pakistan and has a lot of following is Baloch nationalism. We've seen Sindhi nationalism totally drowned, hardly any existence of that, and I think Pashtun nationalism is gone totally. Would you agree with me that Baloch nationalism is now the only nationalism which is challenging the majoritarian nationalist idea in Pakistan? I do agree to that, yes, very much. And I think one should also highlight a big difference between the Pashtuns and the Baloch, because the Pashtuns, in a way, have a country, Afghanistan, where they are the majority, while the Baloch have lost their state. They have lost the Khanat in 1948. So I think that makes them quite different. The Baloch are longing for something they believe they had in the past and which was forcefully taken from them, while the Pashtuns, in a way, can always fall back on Afghanistan as their country. Thanks. Okay, Homa, like I said, that I'm just in the process of reading your book, and you talk about that it's important to study how history is written. So I wanted to ask you, first of all, just briefly explain historiography. What is historiography? You know, because a lot of people get confused. History, what's the difference between writing history and historiography? So please, if you can, just briefly explain what that is. So historiography is basically the study of the historical writing or analysis, critical analysis of it, because there are many different approaches in the study of history. It is not just collecting facts and figures and information, because when we are going to answer the question why this thing was happened, so there is an interpretation and approaches, and we will not get any one answer. That's why history is a living subject, because still studies are going on different fields and another thing is that there are exploration of different evidences and then rewriting of a history. So how historian, because with, it is also mentioned that we use different spectacles when we look at the past. So it is basically a reconstruction of the past, not only what happened, but basically we are reconstructing a past and through the eyes of from the present. And that's why if you look at the history, Pakistan, history writing in Pakistan, there are basically, unfortunately, from the time of the
formation of Pakistan, there is a two-nation theory, or you may say that a nationalist approach and role of a state in developing a nation state. And if you look at the modern concept of a nation, we may say that it's a politically and socially constructed concept. And that's why in Pakistan, unfortunately, state involved and played a very important role in writing, or you may say that what is the narration or other things. And Ali Usman Qasmi also mentioned that Pakistan History Board was formed in 1949, and there was a book under the title of Short History of Hind Pakistan. Now we are no more using this term, but there was a term, History of Hind Pakistan, and there was a prominent historian in this group who have written it. And interesting thing which I found in that book is that the term Indo-Pakistani is used for the Muslims of India. And it means that before formation of Pakistan, they are using that term. If I give you an example, they said, Congress is saying that we are representative of Indo-Pakistani. So how could they use these terms, our historian, in that way? But the thing is that at that time, this was the initial question to how to promote the identity of Muslim, which started during the Pakistan movement, a two-nation theory, or you may say Muslim and Hindu-Muslim separateness. And in early decade, it was pretty dominant, the Hindu-Muslim terms used in history literature. So I take a little longer. That's okay. That's fine. You just Thank asked you. me Thank a you. simple question, Thank you. what is historiography? I see your book, all your books basically, as brilliantly argued cases of suggesting that most of the things we believe in and identify with and belong to are constructed. Right? They're social constructs, they're political constructs, they're not organic. Right? Okay, my question is, people who react to it, like I told you, there have been certain responses to that people say, okay, this is a social construct, this is not me, the organic me is something else. So just tell me, like for example, those responses sometimes, like I told you, there's an Islamist response in the concept, in the context. Aren't they equally constructed as well, based on certain myths? So what is the real us? I mean, I don't think there can be an answer to that. But you know, so what is then important is to emphasize the constructionness or the imagination of nationhood, which is also not to say that it's all built out of thin air. I mean, it's about like how this imagination is a creative process, right? It's so it involves imagination in that sense. So it's important that it's a construction, and B, it's important to critique it, and especially the sort of like the hidden power structures which shape the processes whereby such an imagination takes place. And thirdly, I think then the contestations and how these contestations can posit alternative ways of being as to how this could have been. And this is partially, I think I can say, is part of my project, which is to try to think of the Pakistan project in a different way. That there is no inevitability to what Pakistan became eventually, and the kind of regressive society that emerged out of it. That there was a possibility. There were people who were arguing for a different kind of an imagination in the 1950s, and my sort of effort is to try to retrieve that from the archives, from different debates, from different discourses, and to say that this also could have been a Pakistan, and which becomes more important or relevant, especially now in the given circumstances where I think we are facing perhaps the biggest challenge, biggest existential challenge to Pakistan since maybe 1971, and the whatever the ideology, whatever the artifact keeping it together has collapsed or crumbled
under the under the weight of its own contradictions. So maybe now it's the time to then think and reflect on some other form of historical narrative for Pakistan, which is grounded in Pakistan's history. It's just that needs to be retrieved. Thanks. Martin, again coming back to subnationalism, that's one of my favorite subjects as well. So why is there a subnationalism since you studied in Pakistan, for example? Like I said, there's been an evolving, and Ali has very well documented the whole idea of citizenship based on what Pakistani nationalism is or became after 1971. And there have been responses like subnationalists, Sindhi nationalists not agreeing with this, saying it's like a Punjabi elite majoritarian idea, Baloch national. But are the reasons for this subnationalism purely economic and political, or also it's something to do with culture as well? Because in the end, majority of them, all of them are Muslims, right? And so what do you think is this because they feel that they are not treated fairly as far as economics are concerned, they're not getting their share? Is it political that they don't have the reach to to reach Islamabad? Or there are other things as well, like cultural differences. Like for example, a Baloch Muslim will be a bit different than Sindhi Muslim or Punjabi Muslim. So what are the factors which create or part of these subnationalisms? I think it's all of the factors that you have actually mentioned. But I would say in very general terms that just the common religious belief is not a good founding for a national state. And we see the problems with the two-nation theory, which serves sort of as the theoretical basis of this state even today. There are almost as many subcontinental Muslims in Pakistan today as there are in Bangladesh and in India. According to theory, they should be all part of the Pakistani nation, perhaps not Pakistani citizens because they live outside the country, but according to theory, they are part of this nation of subcontinental Muslims. And just due to the fact that Bangladesh opted for separation, proves the fact that just common religion perhaps is not sufficient for a nation state. In addition to that, I believe that economic reasons, political marginalization are very important factors for people not identifying with the national narrative. And that is the main topic of this book. It is identity. And I think people either have or develop different identities if they don't feel represented in the national mainstream. And I think that is the case in Balochistan. Of course, you have several other aspects like culture, language, food, clothes, history. That's always a matter of perception, very nicely highlighted in this book. But it's a matter of identity. You cannot force an identity on anyone. You have to be in your concept of nation open enough for minorities to identify as well with the national mainstream. And seemingly this has not worked very well in Pakistan. Thanks. Huma, back in the 80s, when I was a college student, and we used to go around calling ourselves Marxists, and we wanted to break out of what we were being taught at school and colleges in the name of Pakistan studies, for example. So in 1985-86, a series of books came, which we found totally liberated us. And that was K.K. Aziz's Murder of History. Then there was one by Sibte Hassan called Battle of Ideas. Then to a certain extent, Aisha Jalal's The Soul Spokesperson, right?
And then eventually that, I think, opened the floodgates. And that's why I think we have these brilliant books like what Ali has been writing in the last 10 years. Right? So what's the difference, I want to know, of what, let's say, murder of history is, how that is written? Because in murder history, he just writes, this is what's written in Pakistan's textbook. This not, it's just fact correction over here. But eventually, in books like these, it's not only that this is a fact. It's actually trying to understand the stories behind these facts, these distortions, why they happen exactly. So how would you differentiate, let's say, both those series of books I've just mentioned, between those books and books like what Ali has written or has been writing? So basically, murder of history is the analysis of the textbooks, basically, and highlighted the factual errors and many other things in that, but it was a very popular one, and people start raising question, what is written in the textbook of Pakistani textbook about the Pakistan movement. But in recent years, and as you mentioned, Ali Usman Qasmi book, the thing is that they are now, how our academia is looking at the past and how they are analyzing. And there are numbers of young men, I may say that, who are now coming out of this narrative of nationalism, and they are now have an idea of what debate is going on or challenges or the terms in different terms and ideas. So if I give a reference of Ali Usman Qasmi, because I thoroughly enjoyed that book, and important thing is that he talks about how a citizenship, a process of citizenship, and also a nationalism idea is in Pakistan developed. And I think so might be on the concept of citizenship and how citizenship is evolved in Pakistan, might be this is the one important book. Although citizenship and issues related to it discussed in some of the books, but not specifically on the basis of debates which were going on at that time in 1950s and early phase, when there was a phase of making of a constitution. So Ali Usman Qasmi use of different sources or references, vast literature he studied, and in which we may include the interviews, proceedings of the National Assembly, and even newspapers. Common people are writing or giving their opinions on different issues. Like he's digging deeper, much deeper. And this is covered in almost around 60 pages on citizenship. And then in nation state, he also mentioned or highlighted how different symbols or symbol pictures and other things are used for developing a nation state. For example, selection of the photo of Qaid-e-Azam, which picture should be used. Then there are flag of Pakistan, the debate on discussion on the flag of Pakistan, color of the flag of Pakistan, and also change the names of the roads and other things. So I think it is a very rich book which discuss different aspects. And also there is a chapter on history writing also, how in 1950s there are different phases on history writing and how historians are using it. He mentioned categorically Dr. Ishtaq Hussain Qureshi, which is known as the ideologue, and also the contradiction in his approach in 1960s, in 1950s, and then when there was a period of Ayub Khan, so centralized government, and then there is another book came under the title of A Short History of Pakistan, instead of using of those terms. So I may say that if we would like to study what actually happened in this process of making a nation state, I certainly would like to students and also other people should read it, and they realize it is not just have a one thing or state accepted it. There is so much going on behind the scene, and there are forces which dictate
how to change the narrative of history writing. And as you compare it, I think now the new emerging historians of Pakistan is overcoming this phase, and they are now looking at the past in different angles. People's history, and they are writing now on different aspects of the history of Pakistan, and they are very rich literature, and they are exploring the different evidences, you may say that, or different sources of history. So we hope so, okay, Yeah. in better position, a history, a discipline of a history in a better position. Ali, before we go into question answer session, we'll be playing something. Abhi nahi, thodi der mein. But before, I want to just ask you, this is a question, like, you also teach at LUMS, right? And everybody knows your work, everybody knows your thoughts, everybody knows how you approach history, especially in South Asian history, you know. And then I'm also very good friends with Dr. Mohammad Waseem, who's also teaches at LUMS and wrote a brilliant book recently called Political Conflict in Pakistan. So you have these amazing teachers, you know, with these sort of ideas. And yet I was talking to Dr. Waseem, and he was so terribly disappointed in his students. I'm sorry, Dr. Waseem, but so are you guys always fighting with them? Are they always challenging you? Because you see, again, they have been indoctrinated. We all were, you know, but somehow we broke out, you know. But do you find it challenging if you, for example, start telling the stories you tell in this book? I think a lot of them, they will be extremely shocked. For example, we talk about majoritarianism and how indoctrination is done in this country. You talk about this board game which you used to play as a child. Please tell us about that. That's brilliant. That's a clever way of how indoctrination was done into little kids playing board games. Do tell us about that board game, please. About your the first question, I mean, it's the challenges or frustrations are manifold. One major, I think, is the language barrier as well, that many students who come from, you know, relatively very affluent backgrounds, they cannot read Urdu texts. And also, you know, the even otherwise, I mean, reading is it's difficult for students to convince students to read more than like 5 pages, 10 pages. But other than that, I think it's a very exciting time in Pakistani academia as well. That for the first time, I think, in 50 years or so, that there is like the beginnings of some kind of intellectual ferment in this country. You know, I love this quote by Aisha Jalal. She called Pakistan an intellectual wasteland. You know, after 1951-52, when the Communist Party was banned and the progressives were suppressed, and it's not that Pakistan did not have its share of good historians or academics. You know, they had some fantastic people, Aligarh graduates. You know, you have worked on them. But you know, along the with the passage of time, with the burden of ideology, they could not you know, compete, and so Pakistani academia, Pakistani historiography declined. But now in the past 10-15 years, so that's the exciting part, where IBA, Habib, LUMS, now AKU, and other places. So there are these vibrant discussions taking place. So it's a mixed bag. About that board game, it's you know, there used to be a children's magazine called Aankh Macholi, and like other children's magazines, they used to come up with special issues every year, and along with that special issue, they would give a gift. So one of the gifts which they gave in 1990, I think, was called Manzil Pakistan. And it was a board game where, you know, the idea was that you start from 712, you know, obviously, and it ends at 1947. So what are the landmarks which facilitate the onward progress of Muslim nationalism and hence the creation of Pakistan, and what are the setbacks which hold you back? So the progress is, you know, Muhammad bin Qasim invading Sindh, and the setback is Akbar inventing Deen-e-Ilahi. So at 1857, or you know, it's a setback. And
You know, so that's the so when we had this little launch party at our house, so we then invented our own board game as well, Okay. where we had some other kind of like you know what helped and what didn't. I'll show you when you visit the hall. You know, So basically saying that Mohammed bin Qasim was the first Pakistani, Deen-e-Ilahi was a big no-no, you know, things like that. So from childhood. Okay, another thing which Ali takes great pleasure in this book and others, if I may, is also to hint and suggest that what we take sacred, for example, the secular sacred, for example, things like the national anthem, the flag, you know, the creators behind it maybe weren't all that serious about it. Like, I will just play a little clip of the person who wrote the lyrics of the Pakistani national anthem, and you'll see and hear that he wasn't all that enthusiastic about it, you know. So basically what we've been told that this is sacred, you know, the flag, the anthem, nationalism, patriotism, have very interesting stories which really don't have such sacred roots as such. We have very normal, everyday people behind it. Good poets, maybe sometimes good ideologues, but not very serious people. So we'll play a little audio of Hafiz Jalandhari, who wrote the Pakistani national anthem, and he's talking about it. Yeah, and he is just a little context that so the tune for the national anthem was approved first, and then the government invited poets to submit their poetry to write an anthem based on that tune. And Hafiz Jalandhari, as we know, was the person who wrote Pakistan's national anthem, was very unhappy with the tune. And in this first audio that we'll play, he's actually mocking the tune itself, which, you know, as you point, like, I mean, we feel it's something very sacred, and people would stand up on their seats, you know, Yeah. to show respect. जो पहले वाला clip है ना, वो जरा चलाइए. अब आप हैरान हो कहेंगे जी आप कैसे कहते हैं। मैंने कहा जी मैं आपको सुना देता हूँ। ये जो धुन आपने दी है, ये धुन ये है जी. पान 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 पान। अब मैं इसको आपको सुनाता हूँ, आप हंसेंगे। हाय 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 हाय। So, so this is what he thought of the tune, but still, I would say, you know, no one else could have written such a brilliant piece of poetry based on such a tune. But the other thing is that he had actually written another anthem prior to that, and that anthem, I find, it was much more lyrical, was much more relatable than the very heavily Persian anthem that he wrote, which is very alienating, which, you know, doesn't talk about any part of Pakistan, does not really, you know, doesn't really connect in that sense. So we'll show you like how with the original anthem that he had written on a different tune altogether. अब दूसरे वाला चला दें. जिंदगी क्योंकि है, जिंदगी बख्शो, जिंदगी के लिए जिससे हरकत पैदा हो, तो मैं नहीं ये तराना लिखा और वो तकरीबन मंजूर हो गया। इसको सुन लीजिए। अब मेरा गला तो ठीक नहीं, ना मैं साज रखता हूँ, साज में बजा नहीं सकता, लेकिन धुन आपकी समझ में आ जाएगी। यूं है, ऐ मेरे आबाद वतन आजाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। तेरे मंदिर तेरे दरिया को सारो मैदान, सल्तनतों सामान खुदाए पाक का है एहसान। तू है पाक अमानत जिस पर जिंदगियां कुर्बान, जिस पर जिंदगियां कुर्बान। तुझ पे निछावर माल जान औलाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। चांद सितारा तेरा परचम रहमत बार निशान,
इस परचम का साया हम पर लाया अमन अमान, खल्क़ खुदा का फर्द फर्द है शाद, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। अदल मुसावात और उख़ुव्वत क़ुव्वत है ईमान, अदल मुसावात और उख़ुव्वत क़ुव्वत है ईमान। मशरिक़ मग़रिब दीदा व दिल हैं दोनों हैं ज़ीशान, मशरिक़ मग़रिब दोनों दिल हैं दोनों हैं ज़ीशान। आम रवादारी पर कायम जमहूरी ईमान, आम रवादारी पर कायम जमहूरी ऐवान। कलमा तैयब उस्तवार बुनियाद, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। ये था वो। Maybe they chose the Persian one जनाब, because they wanted nobody to understand. तकरीबन तय हो गया कि हाँ हफीज साहब। Yeah, I mean, so yeah, this was not approved, but the one which The was other more one, formal. which nobody understands Yeah, which no really, one which understands. people even say is not even Persian. It's Persianized Urdu. I don't know. Yeah. Some people are saying like. It's like India's national anthem, which is Sanskritized Bengali, but it talks about the Indian landscape. Yeah. Right? But in case of but the point is that Urdu was not even the national language, was the majority of the spoken by the majority of the people. So to adopt a very heavily Persianized Urdu anthem was very alienating for the Bengalis. So if you read Bengali newspapers from that time period, they were very upset. And they in fact were demanding as if there should be another anthem in Bengali. There should be one anthem in Bengali and one anthem in Urdu. So that is why if in newspapers back then, people were passing on sorts of judgments, making fun of the anthem, especially because it was so incomprehensible. Yeah. Okay, we'll open up the floor for questions. Please. Brilliant discourse. Well, historical negationism is not unique to our part of the world. It's common everywhere. If you look at Great Britain, Europe, America, but the difference, what I see, I am not exactly a historian. I call myself the accidental historian. I'll tell you later why. But what I see is the negationism in Great Britain, it relates to incidents. In our case, we start hitting and denying the roots. So there's like a whole universe of difference, in terms of historical versus roots versus going to incidents, negating, denying, fabricating. So coming to the point, straight to the question, what is that cement that keeps India together as a nation in spite of the fault lines, in spite of the fractures, in spite of discords, multiple ethnicities, changing landscape of demographics? We are more or less similar. What is that cement to all of you? Democracy. Is that all? I think so. I mean, a democratic tradition, ideas of republicanism, which are much deep-rooted and in which the ruling party, especially Congress under Nehru, invested a lot in cultivating that kind of, which is not to glorify and to overlook the excesses of the Indian state, but investing a lot in cultivating that sense of the Indian Republic and being democratic, and recognition of communities, and especially nations, as a form of unity in diversity. Whereas in case of Pakistan, I think there has been an attempt at overriding these kind of national identities to enforce or forge one singular nationhood, So I think that's a very, very major difference between Pakistan and India, where Pakistan does not want to recognize that Pashtuns are a nation, Punjabis are a nation, and that so on and so forth. So I think that's the major difference. Yes. Assalamu alaikum. Thank you for the session. I'm a writer with TFT Naya Daur. My question is addressed to Dr. Martin. Dr. Martin, I'm also ethnically Baloch, and honestly, as a subject matter expert on Baloch nationalism,
I just wanted to ask you, what in your view is the role played by India, specifically RAW, in bolstering the nationalism and also promoting violent extremism amongst the youth there? Personally, I think that India plays no role in the origins, development, and formation of Baluch nationalism. It has been an accusation for almost 100 years now, but to me it seems to be more like a knee-jerk reaction. I've never seen anything close to proof or evidence. It's a permanently repeated accusation, but according to my knowledge and my research, which was concentrated on the 60s and 70s, I never found any evidence of that. Thanks, Martin. Yeah. इनको भी दे दें जो इनका. My question is to Sir Ali Usman Kasmi Saab. Is religion matter in nationalism in Pakistan? And second question is, what is Pakistan, mulk or sultanate? पहला question क्या था? Sorry. Is religion still matter in nationalism in Pakistan? Okay. And second question is, what is Pakistan, mulk or sultanate, according to your I mean, as title? for the second question, I mean, as some people read it the way you are reading the title, but my intention was slightly different, which was to show the semantic ambiguities of these terms as to how the open-endedness of them and how we sort of, for the lack of conceptual alternative in vernacular languages, we're adopting or borrowing Western political terms which do not really cohere. So that was my intention. About religion, yes, I mean it's I think this has been an ongoing debate that it's a very religious society, and they are shaped, and as Paracha Saab keeps on saying that these are there is no denying the importance of religion, but it's about like what kind of religion. There's no just one kind of religious belief or practice in Pakistan. It varies so much, but yeah, I mean religion has been important, and this importance of religion was recognized by major political thinkers in India, starting from Tilak, Gandhi, Jawahar, Khilafat movement leaders, Iqbal. Each one of them recognized the importance of religion and how do we deal with it, how do we sort of like engage with this religious tradition, was that is more important rather than a suppression of or denial of its importance. One more question. हाँ, किधर बैठे? Please here. इधर आ जाए. आपको फिर मैं 2 questions ले लूँगी. पहले इनको दे दें. काफी देर से वेट कर रही हैं. Here. आप हाथ उठा लें. जी आप. जी. Assalamu alaikum. Thank you so much for this panel discussion. It is so interesting. I'm a teacher, and my question is to Ali Usman. As a teacher, how do you overcome this roadblock or this thinking that the students that I also face have towards this institutionalized way of thinking about religion and citizenship or national belonging, populist narrative? How do you kind of in a very in a way where you are not imposing your ideas but then opening it up to discussion, how do you tackle it? No, that's a very good question, because on purpose I teach a section of on Pakistan studies, which is a compulsory subject, and as Nadeem was pointing out that this is the importance of trivia or stories. So they might sound like trivial information, but for students they have certain kind of a shock value. When you tell students that Chaudhry Rahmat Ali, the man who coined the term Pakistan, was deadly opposed to the Pakistan that was created, and he called Qaid-e-Azam as Quisling-e-Azam, which is to refer to a Nazi puppet of Norway. So they're taken aback.
and and that generates a certain kind of interest, and this is how they at times they get interested in reading more about alternative history. So that's one of the strategies perhaps we can try. I think we've run out of time. They'll just kick us out. We can talk after the session. Sure, we can talk after the session. But the book is now available. It's more affordable version available now. पीछे वो stall भी एक मुझे अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ stall हाँ, right at the stall. Please buy this book. Please. It'll make you a more informed and better person, especially if you want to sort of air your opinions. Thank you so much.
मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा बेंचर से कि वो आगे आ जाएं, दरमियान पेश नहीं कर रही हैं। प्लीज़ जो लोग पीछे बैठे हुए हैं आगे तशरीफ ले आएं। कहते हैं कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। स्टैलिन ने कहा था कि जमहूरियत का इन्हिसार वोट डालने वालों पर नहीं बल्कि गिनने वालों पर होता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूर और जमहूरियत के दरमियान जो राब्ता है वो इलेक्शन है। हम भी अभी इलेक्शन से दो चार हुए। मैं मुजाहिद बरेलवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हमें इलेक्शन के अंदरून या नए जाविये से आगाह करें। मुजाहिद बरेलवी साहब प्लीज़। शुक्रिया ऑक्सफोर्ड। और मुझे कतई तौर पर जब डिस्कशन हो रहा था इब्तदाई तौर पर कि आज मेरे लिए क्या मौजू हो, तो मैंने सोचा कोई आईनी कोई जमहूरी इस तरह की रास्ता निकालूं। लेकिन 8 फरवरी के बाद और जो कुछ अब तक हुआ और ख़ास तौर पर पिछले 24 घंटे या बल्कि 36 घंटे में हुआ, मेरे लिए मुश्किल तरीन था। हालांकि स्क्रीन पर आवाज़ लगाते हुए 2 दहाई हो गई हैं, ज़बान ब ज़बान बल्कि बदलगाम हो गई है, इसीलिए अपने बहुत सारे मोहतरम मेहमानों को बुलाना छोड़ दिया है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब मैं ये सेशन इलेक्शन 2024 एक नया जाविया होता ही है कि अभी मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा तो शायद आप रात को देख रहे हो स्क्रीनों पे एक दूसरा जाविया आ चुका हो, तो कोई एक और कमिश्नर आ गया हो, कोई जज निकल के ना आ जाए, सॉरी टू से कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए। मेरे लिए काबिल एहतराम दोनों बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं, बड़ा शानदार कैरियर है, जस्टिस अनवर मंसूर ख़ान और जस्टिस शाइख उस्मानी की तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और आप लोग ताली करें। और फिर कोई तकरीब हमारी ख़वातीन के बगैर, और वो भी मेरे साथ बड़े अरसे तक रही हैं, शाहीन सलाउद्दीन एंकर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। आज मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए भी कि जो बड़े बड़े अदालतों में वकालत करते हैं, मुश्किल मरहला है। और ये ऑडियंस है, जिस साहब जी तो सबसे पहले तो शुक्रिया जस्टिस शाइख उस्मानी साहब का। वकील की हैसियत से एक इंतहाई शानदार कैरियर रहा है। जब कोई मुश्किल गुत्थी आइन, कानून, अदालत के हवाले से होती है तो मैं स्क्रीन पर इनको लाता हूँ। जस्टिस अनवर मंसूर खान साहब जज भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे और बड़े बड़े मुश्किल केसों में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि ये वो लोग वकील हैं कि लोगों को फांसी के पंदे से भी नीचे उतारवा देते हैं। हालांकि शायद ऐसा ना होता हो, चढ़वाते भी होंगे बाज़ वक्त। और जैसे मैंने कहा कि शाहीन सलाउद्दीन, अब जो मेरा ये ख्याल है कि 1-2 मिनट में आपके लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग एंकर लोग वैसे ही बहुत बदनाम हैं कि सवाल एक करते नहीं, जवाब आता नहीं है, उससे पहले फिर एक और सवाल कर देते हैं। तो किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो तो फिर ये समझा जाता है, क्योंकि वाहिद हल समझा जाता है। 10 साल अयूब खान का मार्शल रहा, क्या हुआ? 10 साल ज़ियाउल हक यहाँ रहा, क्या हुआ उसके बाद? और फिर साबिक़ सदर मुशर्रफ आए, उन्होंने बाद में जिस तरीके से अपने को सरेंडर किया वो भी सामने है। और फिर नतीजा यही होता है कि वही पॉलिटिकल पार्टियां सामने आती हैं जिनको हम 30-35 साल से देख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क है कि पिछले इस इलेक्शन में, जो लास्ट इलेक्शन में एक नई क़ुव्वत उभर कर आई और उसका सबब ये था कि 2 करोड़ 30 लाख वोटर का इजाफा हुआ इस इलेक्शन में। और ये शायद पिंडी आप पारा में बैठने वाले हमारे उन लोगों को नहीं पता था, या गेम प्लानर को नहीं पता था, या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था कि ये
जो इलेक्शन होंगे उसको किस तरीके से ये, और हम सवाल भी करते थे कि वो मैनेज करेंगे। 10 सीट का फ़र्क हो, 20 सीट का फ़र्क हो तो मैनेज हो जाता है, जैसा कि माजी में हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा 8 फरवरी को उस पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया कि क्या आप गुफ्तगू का आगाज़ ये पिंडी के कमिश्नर के तकरीर से तो नहीं करेंगे, इंटरव्यू से? मैंने कहा एक तो देखे कमिश्नर, वो भी पिंडी का कमिश्नर जो है कोई इस्लामाबाद वाले नहीं लगाते। इतनी अहम पोस्ट का अगर वो स्टेटमेंट देगा, और भी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप सीनियर हैं, शायद कुमारी साहब आप सीनियर हैं जस्टिस जी। जस्टिस साहब, ये जो इलेक्शन 2024 हो गए और लोग ये समझ रहे थे, और हम समझते हैं कि जमहूरियत से मुस्तहकम होती है, पार्लियामेंट आएगी, इससे तो मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और शायद इन्हें मौका दूँ, लोग ये समझते हैं कि आइनी सियासी बहरान मज़ीद शदीद हो गया है। हमें नहीं पता कि अगले 24 घंटे में क्या होगा। यहाँ तक के लोग अब मार्शल इलेक्शन के बाद इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, और तो और मेरे मुंह में खाक मार्शल की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो इस इलेक्शन में जो आइनी और कानूनी इसके जो मुज़मरात हैं, असम्बली का इजलास कैसे होगा जस्टिस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ब्रेवी साहब। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा सवाल है, मगर इस सवाल को जवाब देने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कानून के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पहला जुमला जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो कहता है वेयर इज द सॉवरेंटी ऑफ द यूनिवर्स लाइज और बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी and will be and the authority given is to the people of Pakistan. The authority of the institution of this state has been given to the people of Pakistan. उसके आगे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किस तरह से स्टेट चलेगा। तो वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है उसको गवर्न करेगा थ्रू ए प्रॉपर मैंडेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर अल्लाह ताला का जो अथॉरिटी है इस मुल्क की, इसकी सॉवरेंटी की, वो लोगों को, पब्लिक को दी है, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं दी है। और ये पब्लिक जो है वो इंडिविजुअल जो अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ये अथॉरिटी देती है कि आप स्टेट को चलाएं। और अगर ये इशू आता है कि स्टेट को चलाने के लिए किस तरह दिया है, उसका तरीका एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे दिया है कि आप इलेक्शन जो है वो कराएंगे। और इलेक्शन कैसे होगा? जिसमें सोशल जस्टिस हो, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें फेयरनेस हो। और जब ये सब चीज़ें मौजूद होंगी तो जब ही जाकर एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल उस सामने आएगा। अगर आप फेयरनेस निकाल दीजिए इसमें से, अगर आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल माइनस कर दें, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है आप उसको वायलेट करते हैं, इसलिए कि आप एक अथॉरिटी जो है जो अल्लाह ताला ने पीपल ऑफ पाकिस्तान को दी है, वो जो अथॉरिटी है वो किसी तौर पर भी शिफ्ट नहीं होती है टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये बात आप इलेक्शन 24 के बारे में ही कह रहे हैं? जी कुछ हद तक ये भी उसको है। ये अब मैं डिटेल में उसमें तो नहीं जाता हूँ, मगर मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको। जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब इलेक्शन हो तो वो फेयर हो, फ्री हो एंड रिप्रेजेंटेटिव हो। एंड अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो उस सूरत में फिर आप जो है ये कह नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं इन द पार्लियामेंट। और अगर पाकिस्तान के लोग रिप्रेजेंटेड नहीं हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो जो अल्लाह ताला ने एक रिप्रेजेंटेशन लोगों को दी है वो ख़त्म हो जाती है। और उस सूरत में
वो एक फार्स मैं कहूँगा कि एक फार्सिकल इशू होता है। और ये जो मुस्तकिल हम जब से इलेक्शन देख रहे हैं, कोई ना कोई बीच में आकर किसी न किसी तरीके से, चाहे रिगिंग कह लें आप उसको, चाहे मैंडेटेड वो कह दें, चाहे आप मार्शल लॉज कह दें, ये सब जो हैं दे आर वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर सूरत में। और इसको ज़ाहिर जो हमें करना पड़ेगा ठीक। अगर हम लोग पब्लिक नहीं करेगी इसको ठीक, तो फिर और कोई नहीं कर सकता। पब्लिक तो खामोश लग रही है मुझे, आपकी बात को स्वाद नहीं कर रही लगता है, ऐसे ही है क्या? जस्टिस साहब, शाइन लास्ट। जस्टिस साहब, ज़रा मुश्किल सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ आता रहा, उनको मोहर लगाती रही, यानी जो सबसे बड़ा जमहूरियत का पिलर हम कहते हैं अदालतें। जस्टिस मुनीर जैसे लोगों ने अयूब खान की आमरीत को इंडोर्स किया, और फिर जस्टिस अनवारुल हक ने जनरल ज़ियाउल हक के नजरी रोड को इंडोर्स किया, इवन जिसको फांसी लगी उसको भी कहा दुरुस्त किया। और तो और मैंने आपके जस्टिस दोरा पटेल, जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने भी इस वक्त नजरी रोड को दुरुस्त करार दिया। फिर चौधरी कोर्टों का तजर्बा भी आपके सामने है। और अभी ये कहा जाता है कि एक मुश्किल वक्त में जो इलेक्शन कमीशन का काम था, वो चीफ जस्टिस फायद ईसा जो बड़े काबिल एहतराम थे, उन्होंने एक पार्टी से बल्ले का निशान लेकर अपनी जानिबदारी को जाहिर कर दिया। तो जुडिशरी को कहते हैं लोग कि जो भी डेमोक्रेसी ड्रेल होती है उसमें उसका कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत बुनियादी किरदार होता है। सॉरी टू से जैसे साहब, ये सवाल मैं किसी और जज से करता, आपसे ना करता तो बेहतर था। हेलो जी जी जी। पहली बात तो ये है कि जुडिशरी की बात की आपने, जुडिशरी ने ठप्पा लगा दिया, जुडिशरी ने ये कर दिया। यार ये ले लो जी। नो आई माइक कहा कि जुडिशरी ने ठप्पा लगा दिया फैसलों के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, दूसरी जगह पर। सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क में ये है कि यहाँ पर हमारे लोग सिर्फ वो फैसले पसंद करते हैं जो कि उनके हक़ में होते हैं, जो कि उनके हक़ में नहीं होते उसको नहीं पसंद करते। अब मैं भी बेंच पे रहा हूँ, मंसूर साहब भी रहे हैं, अनवर मंसूर साहब भी। अब आप जब एक सामने आपके पास आते हैं, पिटिशनर आता है, रिस्पोंडेंट आता है, फैसले तो आपने एक के हक़ में करना है, एक के ख़िलाफ़ करना है। अगर तो आपने इसके हक़ में कर दिया, ओके वाह 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 बड़ा अच्छा जज है। अगर आपने उसके ख़िलाफ़ कर दिया तो चोर है, बिक गया है, ईमान है, ये हमारा सिस्टम है। यही चीज़ फिर आप ऊपर के लेवल पर, क्योंकि बदकिस्मती से शुरू से हमारे मुल्क में ये सियासी मामलात जो हैं वो जुडिशरी के पास पहुंच जाते हैं। दुनिया में नहीं होता, जितने डेवलप मुल्क हैं बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जो सियासी मामलात हैं या इलेक्शन के मामलात हैं वो जुडिशरी के पास पहुँचे, लेकिन यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पे फिर यही होता है जो कि मैं कह रहा हूँ, आम तौर से पिटिशनर रिस्पोंडेंट का होता है। तो ये चीज़ शुरू से चली आ रही है इस मुल्क के अंदर, और लोग फिर उसको बढ़ा करके फिर लोगों ने उसको मिसयूज़ करना शुरू किया, फिर एक्चुअली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। और आपने देखा कि जिस तरह जस्टिस मुनीर का और दूसरे लोगों का बात कर रहे थे, अभी आपने काजी फैज़ ईसा की बात की कि उसने जो अभी उनसे बल्ला छीन लिया। अब उसको अगर आप देखें, एक कानूनी तौर पर देखें, तो मुझे तो सही नज़र आ रहा था कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन आपने नहीं किए, मिड टर्म इलेक्शन, तो अब आप इसके काबिल नहीं है रखने के लिए, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट कोई नहीं करता। 193 पार्टियों में कितनी पार्टियों ने इलेक्शन कराए होंगे जी? 193 पार्टियां हैं। हाँ। नहीं, वो अलग बात है, नहीं, लोग कहेंगे ना सवाल, वो ठीक है, लेकिन वो हैं कि नहीं, लेकिन जो फैसला था उसमें कोई नुक्स नहीं था। नुक्स ये था कि हमारे यहाँ हो ये गया है अभी कि हमारे मुल्क के अंदर एक नई चीज़ पैदा हो गई है जो कि पहले नहीं थी हमारे मुल्क में। वो ये है कि पहले जो थे पार्टीज़ होती थी, पार्टीज़ की सपोर्ट होती थी, नहीं भी होती थी, आज इसके साथ हैं, आज उसके साथ हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ जो हमारे शुरू हुई है वो एक कल्ट फॉलोइंग शुरू हुई है, जो कि पहले नहीं थी हमारे मुल्क में, जो मसलन माओ से तुंग की थी या किम इल संग की नॉर्थ कोरिया में थी। कल्ट फॉलोइंग के गुड और बैड, ही इज़ द बेस्ट, ये एक चीज़ शुरू हुई है ये हमारे मुल्क के अंदर। इसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया। अगर कोई चीज़ जिसकी कल्ट फॉलोइंग है उसके ख़िलाफ़ होती है वो गलत है,
और अगर उसके फेवर में होती है तो वो सही है। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि जो टर्मोइल आया हमारे सियासत में, जो नए जाविये की बात कर रहे हैं आप, जो कि पहले इस मुल्क में नहीं था, अब शुरू हो गया। शाहीन, एक नया जाविया क्या तलाश करें इलेक्शन 2024 का? शफाफियत पे बात तो कर दी इन्होंने, साफ भी हम लोगों ने देख लिया। दिन रात के 12 बजे तक मैं भी आवाज़ लगा रहा था टीवी पर, सुबह उठा तो मैं भी गलत दूसरे नताइज बता रहा था। बताइए ऐसा क्या हुआ? जी मुजाहिद साहब, हर दाविया बदल गया 2024 में तो। और मैं जब ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपने तो 12 बजे तक आवाज़ लगाई, मैं तो सुबह 9 बजे तक लगा रही थी पूरी रात, शायद पहली दफ़ा ज़िंदगी में पूरी रात जागी थी। जो नताइज आए वो तो अब पता ही है सबको कि कितने डिबेटेबल हैं, लेकिन उसके अलावा जो इसमें नया जाविया था वो ये, जैसा कि आपने कहा, हमारे मुल्क में बेईमानियां तो हमेशा हुई हैं, पब्लिक मैंडेट से मजाक हमेशा हुआ है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वो मजाक इस हद तक बढ़ गया, इस हद तक बढ़ गया कि अवाम निकल आए। जिसे जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि कल्ट, भुट्टो के भी बहुत दीवाने थे लोग, भुट्टो के लिए भी निकले, मैं उसे कल्ट नहीं कहती। कैनेडी जब मरे अमेरिका में सन 60 की बात, 63 की बात है, तो लोग बेतहाशा रोए, वो कल्ट वाली बात नहीं है। आपको ज़ाती तौर पे एक शुक्र करें, पाकिस्तान में किसी को किसी से मोहब्बत तो हुई, और दूसरा ये कि दूसरा ये कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट को या हमारे जो लोग फैसले करते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी सीटें मिलेंगी, उन्होंने ये तय किया होता है कि पीछे से वो डोरें कैसे हिलाएंगे। ये नया दाविया आया कि डोरें हिलाने वाले, उनकी डोरें हिल गई। अब मसला ये है कि जो कैलकुलेशंस थी वो गलत आई, उनको जल्दी में प्लान बी सोच रहा है। प्लान बी जो उनका था वो बज़ाहिर लगता है नहीं था। अगर आप बैनुल अक़वामी कमेंटेटर्स को सुने, प्रवीण स्वामी को सुने, शेखर गुप्ता को सुने, मुख्तलिफ इंडियन एनालिस्ट, मुख्तलिफ वेस्टर्न एनालिस्ट, उनके नज़दीक ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो जिन लोगों के पास जाना चाहिए थी उनको गलत मवाद दिया गया। एंड दिस इज द न्यू जाविया कि हम सब बैठे सोच रहे हैं कि अब आइंदा सबको कैलकुलेशंस किस हिसाब से करनी है, लेकिन एक हिसाब से करनी चाहिए, और वो है मुल्क को मद्देनजर रखें, अवाम को मद्देनजर रखें और यूथ को अंडर एस्टिमेट ना करें। जस्टिस साहब, मुझे वो पहला सवाल करना था क्योंकि 24 घंटे से हो रहा है। एक कमिश्नर के बयान की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी? उससे पहले भी एक मेरे एक आम एक कोई साहब थे जिन्होंने इस इलेक्शन को कहा कि दोबारा होने चाहिए और गालिबन पीर को 19 फरवरी को उसकी समाअत भी होगी। दूसरे ये कि खुद जो कमिश्नर पिंडी, और मैं पिंडी पे बार बार जोर देता हूँ, आपारा पे नहीं, पिंडी आपारा दोनों मिला ले मिलके, पिंडी जो है कमिश्नर पिंडी के जो ये स्टेटमेंट जिसमें चीफ जस्टिस को भी कहा गया है कि जी वो इलेक्शन कमिश्नर इसमें शामिल हैं, और मैं पढ़ रहा था कि उन कमिश्नर साहब का कैरियर बड़ा स्मूथ रहा है, बड़ा अंग्रेजी अखबार डॉन में, तो क्या उस बेंच में चीफ जस्टिस को बैठना चाहिए जिसमें खुद उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इसमें शामिल थे कि इलेक्शन साहब जवाब ना हो? जी, बहुत मुश्किल और चुभता हुआ सवाल है, मगर बिल्कुल सही कहा कि कमिश्नर साहब का जो बयान है उस पर मुख्तलिफ आरा हैं, जिसमें कि लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये कोई प्लांटेड हैं, किसी ने यह भी कहा कि ये तो अपारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़हनी मरीज हैं, एक साहब ने कहा जो खुद भी थोड़ा बहुत ऐसी तरह के हैं। किसी ने यह भी कहा कि इनके भाई जो हैं वो फलां उसके PMLN के हैं या फलां पार्टी के हैं,
और चूँकि मुख्तलिफ आरा थी, इसलिए जाहिर है कि एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की है। मगर एक कमिश्नर अपना करियर का लास्ट लेग पे खड़ा हुआ, जो ये समझता है कि अगर ये बात वो प्रूव नहीं कर सकेगा तो उसकी जिंदगी भर की कमाई जो है, उसकी पेंशन जो है, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और आके ये कहे कि मुझे टांग दो और ख़ुद अपने आप को अरेस्ट करवा ले, वो आदमी बज़ाहिर झूठ नहीं बोल सकता, बल्कि लापता है अभी तक तो वो गालिबन। और जाहिर है कि अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है तो आप इस स्टेटमेंट को कोरिलेट करें उन लोगों के जज्बात से और उन लोगों के जो बातें की गई हैं, जो पब्लिक बाहर निकली है ये कहते हुए कि जी हमारा जो वोट है वो छीन लिया गया है। और ये आप गौर करें इस बात पे भी कि अगर फॉर्म 45 की बात अक्सर होती है, जो कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है इलेक्शन का, और हर जो पार्टी वाले हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे वो एमडब्ल्यूसी हो, जो भी है वो हो, सब ने ये कहा कि ये जो फॉर्म 47 है वो 45 से मुताबिकत नहीं रखता है। अगर ये दोनों बातें को मिलाया जाए तो नज़र आता है कि जो कमिश्नर है उसने गलत बात नहीं की है। वो ये कह रहा है कि मैंने ये लोगों के कहने के ऊपर मैंने ये फॉर्म्स चेंज किए हैं। मैंने 47 जो बना है, इसलिए कि 45 पे तो कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं है, 47 पे ताल्लुक है कमिश्नर का। जो बना है वो मेरे कहने पे बना है, और मेरे कहने पे बना इसलिए है कि मुझे किसी ने कहा। जैसा एक और बात, ये मेरा जैसा जो काफ़ी टीवी पे आता है, काम ही यही करता है, मुझे फॉर्म 45 नहीं पता था, तो मेरे ड्राइवर ने, बल्कि मेरे मासी ने भी मुझे बताया कि 45 ये था कि हम इस तरह वोट देते थे, हम सब जमा हुए, फिर 45 बना। शायद उस्मानी साहब ये जो मगर एक बड़ी इसमें कमाल की बात तो ये हुई है कि जो लोग जीते हैं जेन्युइनली, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जो भी हो, इन्होंने आपस में एक इत्तेहाद हो गया इनमें आपस में एक लिहाज से कि दोनों ने अपने फॉर्म 45 शेयर कर लिए एक दूसरे से, और वो फॉर्म 45 जो हैं वो बेसिकली एक से हैं, और जो बना के दिए गए हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो अब इससे नज़र आ रहा है आपको कि बेसिकली जो शाहीन ने कहा भी कि ये पीछे से डोरियां खींच रहे हैं, और पीछे से जो डोरियां खींच रही हैं वो जो ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कमिश्नर है, उसकी डोरियां खींची गई अगर, तो उसने चेंज किया है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये चेंजेस जो हैं इसमें कोई, जैसे कमिश्नर ने भी कहा कि अब री इलेक्शन कराने का कोई इसमें जवाब नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल 45 इकट्ठे कर लीजिए और उससे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो उस्मानी साहब, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कौन डोरियाँ खींच रहा है, अभी 70 तो हम नहीं जाएंगे ना, छोड़ दें, जिन लोगों को भी छोड़ दें समझने के लिए। शायद उस्मानी साहब, जस्टिस साहब ने कहा है, मेरे ख्याल ने इन्होंने जो कुछ कहा वो आपके लिए सवाल ही समझकर और ज़्यादा मुश्किल शायद हो गया हो। आप बताइए। देखिए, मैं तो इस मुल्क को देखते आ रहा हूँ 75 साल से, और सारे इलेक्शंस देख रहे हैं शुरू से अभी तक, और कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जिसमें कि ये ना कहा गया हो कि इसमें धांधली हुई। कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं, हर जगह धांधली हुई। अब ये है कि किस तरीके से धांधलियाँ हुई हैं वो तो ज़माने से के मुताबिक चेंज होता रहा। आज किसी और तरीके से होती है, कल किसी और तरीके से होती है। ये धांधली ज़रूर होती थी। सिर्फ एक इलेक्शन था जिसके मुताबिक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, वो इलेक्शन जो कि यहिया खान ने करवाया था, और वो भी इलेक्शन जो है पाकिस्तानी तोड़ गया। अब लेकिन वो इलेक्शन पे किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें धांधली हुई। वो इलेक्शन जो था वो उसकी धांधली ये थी कि पाकिस्तान को तोड़ना था। वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो उसकी वजह है, वो पाकिस्तान टूटने उसकी वजह से टूटा। लेकिन मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वी टॉकिंग इलेक्शन वो एक इलेक्शन था जिसमें कि धांधली नहीं हुई थी, और वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो फौज ने कंट्रोल किया था। उसमें ना कोई कमिश्नर इन्वॉल्व था, ना कोई दूसरे लोग इन्वॉल्व थे। तो ये एक हमारी नेचर है कि हम आप उसको छोड़ें, हमारे क्लब्स के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर लोग शोर मचाते हैं, धांधली हो गई, तो आप क्या बात करते हैं। तो ये तो एक पाकिस्तानी नेचर है
पाकिस्तान और इंडिया को मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की नहीं, मैं उस्मानी साहब मैं बहुत ही एहतराम के साथ आपसे इसलिए इख्तलाफ करूंगा कि 1988 में 1989 में जो कुछ इलेक्शन जो पहले हुए मार्शल लॉ के बाद, उसमें उस वक्त के मरहूम ISI के चीफ हमीद गुल ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने 15 नशिस्तें छीनी क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा था कि उस वक्त की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले, और फिर उन्हें कराची की 15 बैसाखियाँ देकर हुकूमत में बिठाया गया, और फिर जब उतारना था तो बैसाखियाँ खींच ली गईं। ये जो 15 बैसाखियाँ होती हैं ये बार बार दी जाती हैं और खींच ली जाती हैं। यही 2018 में हुआ कि किस तरह लोग बैठे 184 के जरिए छोटे शरीफ साहब। शाहीन ऐसा ही है मुजाहिद साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा, बैसाखियाँ क्या, डोरियाँ, बैसाखियाँ सभी कुछ सबके पास उनके पास होती हैं और वो करते रहे ये काम। लेकिन इस दफ़ा आई थिंक सल्यूट टू द पाकिस्तानी कौम एंड जिस political party, I may not be a voter of PTI, but I'll say one thing. क्या political party जिसको PTI कहते हैं, उस शख्सियत को आप टीवी पे नहीं देख सकते? वो शख्सियत जेल में बैठी थी, उसका वर्कर निकल नहीं सकता था, जलसा नहीं कर सकता था, जुलूस नहीं कर सकता था, और ऊपर से सिंबल भी नहीं था, और उसके अलावा कहा जा रहा था टेलीविजन पे बैठ के, मैं और आप मीडिया के हैं तो जरा अपने आप गरेबानों में भी झांकें, कह रहे थे बार बार कि जी इलेक्शन डे साइंस कुछ और है, कीमा नान चाहिए, कचौरी चाहिए, नहारी पाए जो भी चाहिए खिलाने को, उसके अलावा गाड़ियाँ चाहिए, चीज़ें चाहिए लोगों को ले जाने के लिए। इस वोटर ने जिसने मेजॉरिटी वोट डाला है, ना इसने कीमा नान लिया, ना इसने पराठे लिए, ना इसने गाड़ी ली, पता नहीं कैसे आए, कैसे गए, कैसे वोट डाले, और अब खड़ा हो गया कि हमने वोट डाला, तो इसका मतलब है कौम में शऊर आ गया और बड़ा पीसफुली किया है उसने। जैसे साहब जी मंसूर साहब, अब होगा क्या? मसलन इस बयान को सबूत बनाकर दो बातें हैं जो बहुत कही जा रही हैं, जिसमें गालिबन 19 फरवरी को कि क्या इस पूरे क्या दोबारा इलेक्शन होंगे, खुदा ना करे 50 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, मुश्किल होगा। आपने दुरुस्त कहा कि 13 नशिस्तें, 13 नहीं वो कहते हैं 23 हैं, 33 हैं, उसे किस तरह चेंज करेगा, कौन करेगा? कि दोनों हजरात यानी दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस तो इस मौके पर डटे हुए हैं, जो उन लोगों ने किया है, मैं उसकी तरफ नहीं कहूँगा। जी देखिए, जब हम इस बात को करते हैं, जैसे शाहिद ने भी कहा कि एक शख्स है जो कि जेल में आप है, तो नाम ले देना, आपको क्या होगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, जो कि जेल में है, और वो शख्स ही जेल में नहीं है बल्कि उसके जो मेन लोग हैं वो सब जेल में हैं। जेल में डालने वाले कौन हैं? हमारी जुडिशरी। अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी अगर बैक ट्रैक नहीं करती है इस पोजीशन के ऊपर, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मैंने शुरू में कहा, क्या जुडिशरी ने जबरन ये किया? जी, प्रेशर पे किया जुडिशरी ने ये? मैं जरा उसके ऊपर आता हूं अभी। वो जब जुडिशरी ये देख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अभी मैंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर मींस द वोटर इज फ्री टू इलेक्ट, और जो इलेक्ट होने वाला है ही इज फ्री टू आस्क फॉर हिज वोट्स। फेयरनेस वहां जो एस्टैब्लिशमेंट हो, जो लोग इसको केटर कर रहे थे, जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि एक पार्टी आए, और चूंकि उसको पार्टी को नहीं लाना था, जो माइंडसेट था लोगों का, माइंडसेट क्या है कि अगर आप लीडर को गायब कर दें और लोगों को जो वोट लाते हैं उनको गायब कर दें, तो वोट
स्टेशन तक नहीं पहुंचेगा। इतना जुल्म करें कि लोग डर जाएं उस पोलिंग स्टेशन से जाते हुए। ये वो था जो फेयरनेस और फ्री जो इलेक्शन है उसकी एक रुकावट थी। नाउ हियर इट इज कि जो हमारे कोर्ट्स हैं दे हैव टू बैक ट्रैक। अगर वो बैक ट्रैक नहीं करेंगे तो ये इस मुल्क के अंदर कभी फेयरनेस नहीं आएगी, कभी फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरा, आप अगर उसका पीटीआई का सिंबल ले लेते हैं ऑन अ बेसिस विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मैं क्यों कह रहा हूं? जब पीटीआई का इलेक्शन हुआ था, आई वॉज कॉल्ड इन एज एन ऑब्जर्वर एंड आई एम विटनेस टू दैट। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन बाकायदा हुआ था, इमरान खान वो स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, उसका एक और शख्स था जो खड़ा हुआ था वहां पर, उसके जो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है मगर वो और खड़े हुए थे, और वो उसने आकर ऐलान किया कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं इसलिए कि जो हालात देख रहे हैं, दिस आई एम अ विटनेस टू दिस फैक्ट। तो इसका मतलब इलेक्शन हुए थे। डिस्पाइट दैट द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड the election commission's version, which is an incorrect version, और उन्होंने उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया। और कब छीना? जब जितने वोटर्स थे, जितने कैंडिडेट्स थे, उन सब ने लिखा हुआ था अपने फॉर्म पे कि वी हैव बीन गिवन द पीटीआई मैंडेट। फॉर्म पे उस वक्त तक सिंबल नहीं आया हुआ था, तो जब फॉर्म जमा कराए हैं तो वो पीटीआई की तरफ से खड़े हुए थे। आप लास्ट मोमेंट पे जब किसी का इलेक्शन सिंबल ले लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि उनको जो है वो इंडिपेंडेंट कर देते हैं। इंडिपेंडेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है? जो ये आप आगे देख रहे हैं, जो दिस इज प्लान्स दैट आर कमिंग अप, और ये हमारी जुडिशरी अगेन इज गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस। कि प्लान क्या है? प्लान ये है कि आप इनको छीन लेंगे ना, इनके लेडी जो मेंबर, विमेन मेंबर जो आने हैं वो नहीं मिलेंगे इनको, इनके जो सेनेट के अंदर जो इलेक्शन होने हैं मार्च के अंदर वो इनको नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये सब नहीं मिलेंगे तो इनके खुद ब खुद वोट्स कम हो जाएंगे अगर इलेक्शन होके भी आता है। तो ये पूरा एक प्लान्ड एक था। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि हमारी जुडिशरी को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, और दोज हु मैटर, या एस्टैब्लिशमेंट हो या जो भी पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, जो कि इस गवर्नमेंट को जो इंटरिम गवर्नमेंट है, दिस इंटरिम गवर्नमेंट शुड हैव बीन वेरी फेयर, जो कि नहीं थी। तो इन सब को दे शुड बी टेकन, मेरा अपना ये ख्याल है, दे हैव टू गो बैक एंड सी एंड से दैट वी वर रॉन्ग। जी, तो इसके आगे बात तो उस्मानी साहब आप ही बढ़ा सकते हैं, मैं तो सवाल नहीं कर सकता। जी पूछे। सॉरी, जस्टिस मंसूर साहब ने जो कुछ कहा कि जुडिशरी को पीछे हटना पड़ेगा, और कोई और नहीं, कादी फायद ईसा साहब जिनके बारे में बड़े आपकी बारों ने और आपकी वकला ने बड़ा जश्न मनाया था और कहा था कि जनाब इनके पीरियड में बिल्कुल सही दुरुस्त फैसले होंगे, कैसे पीछे हटेंगे? आज तो उन्होंने कह दिया, सबूत कहाँ है? मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि जज बनना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक के ख़िलाफ़ फैसला करना होता है, एक के फेवर में करना होता है। और अगर वो पब्लिक परसेप्शन में जो फैसला किया है वो नहीं पसंद आता लोगों को, तो फिर उसके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। और चूँकि आजकल सोशल मीडिया आ गया है, और पहले तो सिर्फ अखबारों में ख़बरें आती थी या रेडियो पाकिस्तान से ख़बरें आती थी, और आजकल तो हर एक आदमी पढ़ सकता है, तो फिर वो एक शुरू हो जाता है एक तसलसल, और फिर वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे मुल्क में तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। सीधी बात यह है कि जो लोग कहना चाहते हैं और कहते नहीं हैं, वो ये कहते हैं, वो उनका कहना ये होता है कि इसमें हमारी मिलिट्री इंटरफेयर करती है, और मिलिट्री ज़बरदस्ती करके इलेक्शन का रिज़ल्ट जो चाहती है वो लेके आती है। ये एक चीज़ है जो कि आमतौर से लोग कहते हैं। अच्छा, और अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसमें, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, मिलिट्री इंटरफेयर करती है। मिलिट्री इंटरफेयर हमारे मुल्क में कर रही है सियासतदानों की वजह से। सबसे पहले एक सियासतदान ने ही अयूब खान साहब जब आर्मी के चीफ होते थे उनको मिनिस्टर बनाया था कैबिनेट में। ये तो उस ज़माने से शुरू हुआ था। चौधरी मोहम्मद अली साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब ने उनको मिनिस्टर बनाया था, आर्मी चीफ जो था उसको। तो ये चीज़ तो उस ज़माने से शुरू हुई है।
आर्मी के इंटरफेरेंस, जब आर्मी को आपने बुला लिया तो फिर आर्मी अपनी स्पेस ढूंढती है और आर्मी स्पेस पैदा करती है। अब देखना आपने ये है कि आर्मी की स्पेस को आप कम कैसे करेंगे। आपको इंटेलेक्चुअली इसको सॉल्व करना चाहिए, क्रिटिसिज्म से सॉल्व नहीं हो सकता, गाली देने से सॉल्व नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअली कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि आर्मी को वो मौके नहीं मिलें, और वो किस तरह से नहीं मिलेंगे। वो आर्मी क्यों हमारे मुल्क में इतनी मजबूत है और क्यों ये इस किस्म की हरकतें कर बैठती है और आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप एक किस्म की सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं। आपकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ जो है कॉन्स्टेंटली जो कॉन्फ्रंटेशन होती है, उसकी वजह से हमारी आर्मी को मौका मिलता है कि वो अपनी स्पेस बढ़ाती जाती है। अगर आप इस तरीके से वो चीज़ को ख़त्म करें, जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको कम करें, अपने जो आपके जो स्टांस है, आपके जो उसूल है वो रखें अपनी जगह पर, लेकिन अगर इस चीज़ को आप ख़त्म करें वो तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आर्मी का रोल खुद ही कम होता जाएगा। तो इसको इंटेलेक्चुअली सॉल्व करना है, शोर शरार मचा कर। सॉरी उस्मानी साहब, ये इंटेलेक्चुअली कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वकला और जजों से ज़्यादा बड़ा इंटेलेक्चुअल तो कोई नहीं हो सकता। दे क्रिएटेड प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मेजर कर्नल ब्रिगेडियर से ज़्यादा बड़े इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होते। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनकी तो आवाज़ ही नहीं आती, उन्हें तो बोलने की इजाज़त नहीं होती। तो ये तो आप इंटेलेक्चुअली नहीं, इसमें ये एक्सेप्ट कैसे करेंगे शाहीन कि उनसे इतनी बड़ी हिमालय से बड़ी गलती हुई कि वो मैनेज करना चाह रहे थे इस इलेक्शन को, और मेरा ख्याल ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर भी था, उन्हें गलत इत्तला पहुंचाई क्योंकि वो सेफ हाउसेज में रहते थे, उनको नहीं पता था कि लोग सड़कों पे, गलियों में, मोहल्ले में किस तरह सोच रहे हैं। ऐसा ही है। होता ये है, जो भी हमारे इदारे हैं उन्होंने अपने आप को खुद बदनाम किया है, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हो। वो ये समझते हैं कि अब तक हमने ये कर लिया तो हम ये आगे भी कर सकते हैं। उनको इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया नहीं थी। हर दफ़ा यूट्यूब बंद करवा देंगे, एक्स या ट्विटर बंद करवा देंगे, लोगों को घरों से पकड़ के ले जाएंगे, बच्चियों को जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन भी तो सोचिए। बच्चियों को, औरतों को गले से पकड़ के, सीने से पकड़ के घसीट के जो कुछ पंजाब में हुआ, उसका रिएक्शन नहीं होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आप, मुल्क क्राइसिस में है, इकोनॉमी डाउन द ड्रेन है, इंटरनेशनल रिलेशन कोलैप्स हो चुके हैं, और आप कह रहे हैं इस शख्स ने इद्दत में शादी की थी या नहीं की थी। ये क्राइसिस था इस मुल्क में। आपके इदारे, इसका रिएक्शन क्या होगा? उसने निकाह किया है, शादी की है, गवाह मौजूद हैं, गांधी साहब और इन लोगों के रिलीजियस, और आपने कौन सा मुकदमा नहीं किया उसके ऊपर? उसके ऊपर टेररिज्म का मुकदमा है, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, उसके ऊपर दिस एडल्ट्री का मुकदमा। शाहीन काफी हो गया। मैं चाहूंगा एक जस्टिस अनवर मंसूर साहब और इसे कंक्लूड करा के फिर हाउस ओपन करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत ही बेचैन हैं लोग। लेकिन जस्टिस साहब ये फैसला करेंगे कि किस, एक तो ये कि मैं चाहूंगा कि सवाल ही हो, सॉरी टू से, क्योंकि बहुत ही दिल के अंदर भड़ास है लोगों के, और कोई खातून से मैं जो सामने बैठी हैं इनसे सवाल करूंगा, और आप अपना नाम बता के जिनसे सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। जी माइक दें बेटा। मुजाहिद साहब हमेशा खवातीन से पहले सवाल लेते हैं। हाँ भाई, इसमें क्या अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आई एम अ टीचर इन अ लॉ स्कूल, एंड जैसे शाइक साहब ने कहा कि इंटेलेक्चुअली हमें इस चीज़ को डिबेट करना चाहिए एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस, अदरवाइज व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। सो मेरा सवाल ये है शाहीन से कि आई कैन सी दैट यू सपोर्ट डेमोक्रेसी, you support representation, fair representation, but what would you say about all these political parties who come into power holding the hand of the very institution which has historically time and again turned against them, and it is happening again and again and again, हर दफा। तो आप moral standing क्या है ऐसे लीडर की, सारे लीडर्स की? Tragedy of a time is, this is the Greek tragedy. हमारे यहाँ इस वक्त क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट पैसा है, दौलत है,
उस बंदे को आप देखते हैं गाड़ी कितनी, पैसा। सियासत में कोई पब्लिक सर्विस को नहीं आ रहे। वो क्यों आ रहे हैं? मेरा स्टेटस इतना होगा, मुझे यहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी, मुझे वहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी, मुझे वहाँ से इतना मिलेगा, वहाँ से इतना कट। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल पे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस एंड अदर्स ऑल्सो। इस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में एक्सेप्शंस होंगे, मैं ये नहीं कह रही 2-4 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली जिसको दाव लगता है वो पैसा बनाने के लिए सियासत में बैठा है और वो दूसरों को भी प्लीज करता है कि जी मुझे आगे ले आओ सियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक यहाँ से हो जाए फिर आप तक आ रहा हूँ प्लीज। जी 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 हाँ, मेरा नाम सादत यार खान है और आई एम अ लॉ स्टूडेंट। मेरा सवाल जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से है कि मुझे थोड़ी सी इस पर ज़रा नोशन डाली है कि ये क्या वजह है कि जब हम किसी को कन्विक्शन करनी होती है तो विद इन नो टाइम हमारा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कन्विक्ट करके उसको आउट कर देते हैं सीन्स, और जिसको लाना होता है उसका विद इन नो टाइम हम तमाम सजाएं माफ़ करके ड्राई क्लीन करके उन लाके बिठा देते हैं। थैंक यू। सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया इन्होंने। अभी तो आप लॉ स्टूडेंट है ना, जब जज बनेंगे पता चलेगा फिर आपको। Fortunately, he's not a law student; he's a lawyer, senior lawyer. Lawyer. I thought you said he's a law student. His wife is. जी इधर दे दिए, लेफ्ट को जरा आ जाए फिर राइट को आते हैं। जवाब दे दिया, अभी आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, जब जज बनेंगे तो आप खुद जवाब देंगे। जी अस्सलाम मुजाहिद शाइख अनवर। आवाज़ मैं एक तो मुजाहिद ने एक बात कही थी एंड नोबडी commented on it or corrected it. I felt it was wrong. Maybe you can rectify it now. मुजाहिद ने कहा कि वो जो सिंबल वाला केस था वो गलत उसने अपनी तरफ ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसे चीफ जस्टिस या किसी भी जज के पास इख्तियार होता है कि वो केस किसी के पास जाना है और वो अपने पास ले ले। तो ये एक गलत बात थी, इस तरह से नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमारी पार्टीज़ जाती हैं फ़ौज के पास और हमेशा से जाती रही हैं, इसी तरह से हमारी जो चीज़ें पॉलिटिक्स में उनको आपस में बैठ के करना चाहिए वो करने की बजाय हर दफ़ा कोर्ट में घुस जाती हैं कि हर चीज़ कोर्ट करे, ये भी गलत है। और ख़ास तौर पे ये इमरान खान के दौर में देखा गया कि एक वो कल्ट बन गया है, जैसे वो है राइट और रॉन्ग, इट्स अ कल्ट। ठीक। एंड हर बात उनके जब पसंद की होती थी, जब जज साहब कहते थे अरे इमरान ने सुना नहीं होगा इसलिए वो गलती से आ गए इस्लामाबाद, वो आग लग गई, वो उनको पता नहीं होगा कि आग लग गई थी, तो लोग जब वो बातें करते थे जज तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था। जब उनके खिलाफ जजमेंट आ रही है तो ये जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट है ये उन गाली गलौज करते ये भी एक राय है। जी जी सर। मैं इसमें दो चीज़ें करेक्ट कर दूं। अव्वल तो मैंने ये नहीं कहा था कि कोर्ट ने खुद ले लिया। अच्छा, उन्होंने कहा बहरहाल कोर्ट ने खुद नहीं, मैंने भी इस तरह नहीं कहा था। दैट इज द फैक्ट कि कोर्ट ने खुद नहीं लिया था, इट वेंट टू कोर्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ तक के भी कामरान ने कहा, दिस इज जो हम बात करते हैं मूवमेंट की, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कल्ट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर एंड मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वी आर टॉकिंग ऑफ अ मूवमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ कल्ट वन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा बड़ा अच्छा कि बेसिकली जजेस का जो एक डिफ़िकल्टी होती है कि वो कभी उनको फैसला अगर उनका सही हो तो वो किसी को पसंद आता है तो लोग तारीफ़ भी करते हैं और अगर पसंद नहीं आता है तो उस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी जजमेंट को तो उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए क्रिटिसिज्म में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ तक कि इलेक्शन का ताल्लुक था, कोर्ट ने ये चीज़ नहीं देखी कि इलेक्शन एक्चुअली हो चुका था और कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था कि वो किस तरह से इलेक्शन हुआ है, इसलिए कि इलेक्शन जब हो जाए और वो उसके ऊपर सब डॉक्यूमेंट्स आ जाए इलेक्शन के तो दैट हैज़ टू बी द फाइनल थिंग। कोर्ट ने ये नहीं देखा, ये लॉजिक है।
मैं जब बात करता हूँ लॉजिक की, तो इट इज़ अ टोटली डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. क्रिटिसिज्म इज मस्ट, जजमेंट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, यस, बट विद लॉजिक. ये अगर है तो आई थिंक दैट इज अ फाइन थिंग. जी आपको दीजिए. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक छोटा सा सवाल है. आपका नाम प्लीज? असलम भट्टी मेरा नाम है. मैं भी रिटायर हो चुका हूँ और ऑलमोस्ट आप सब लोग भी रिटायर हो चुके हैं. नहीं, ये सब रिटायर नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत काम कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा काम कर रहे हैं. उस्मानी साहब से छोटा सा सवाल है कि आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि क्या होगा हमारे मुल्क पाकिस्तान में. नंबर 2, मुझे जज साहब से एक और सवाल भी करना है कि कमिश्नर के बारे में आप बहुत कुछ तो बता रहे थे कि उसकी डोरियां कोई पीछे से हिला रहा था, मगर अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, अब तो नाम ले सकते हैं कौन डोरियां हिला रहा था. एक सवाल और ले लीजिए, उधर से फिर दोनों का जवाब दे देंगे. अच्छा, आपके पास आ जाए पीछे. सवाल प्लीज जरा. हाँ, बड़ा सीधा सा सवाल है. ये हमारा जो चौधरी निजामुद्दीन है, ये इसके ऊपर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? दिस इज माय क्वेश्चन. कौन है चौधरी निजामुद्दीन? जी, चौधरी निजामुद्दीन जो हैं, इट इज रेफर्ड टू एज द एस्टैब्लिशमेंट. अच्छा जी. अच्छा प्लीज इनको दें और फिर उस खातून को. सॉरी, आपको क्या सवाल था? चौधरी निजामुद्दीन का क्या था? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. अजहर दुरानी मेरा नाम है. फॉरेन इन्फ्लुएंस है या नहीं है? जी प्लीज आपका नाम बताइए. अजहर दुरानी मेरा नाम है जी. अच्छा, आप पैनलिस्ट ने जितनी भी गुफ्तगू की उसकी तान यहीं पर आके टूटी है कि जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है वो फौज कर रही है. हुकूमत का बनाना बिगाड़ना, इलेक्शन का कराना नहीं कराना, पार्टियों को बनाना बिगाड़ना. अच्छा, तो देखें ना, इसका एक फार्मूला तो है ना. 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन जब लेनिन ने किया, 1949 में रेवोल्यूशन जब माओ तंग ने किया, 1969 में जब रेवोल्यूशन ने ची गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो ने किया, और 1972 में हो ची मिन ने किया. इन सब का एक ही फार्मूला था. आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन क्योंकि बोल रही है, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ. यू आर वेरी गुड इन स्पीकिंग मिस शाइन. तो ये सवाल मैं आप ही से कर लेता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन बोल रही है, तो आप जवाब भी इसका इंशाल्लाह देंगी. तो ये है कि फार्मूला उनका एक ही था कि अगर आर्मी बार बार मदाखलत कर रही है कामों के अंदर और मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो इनका एक ही फार्मूला था कि एंटी पीपल, एंटी स्टेट आर्मी का खात्मा करके न्यू आर्मी तश्कील दी जाए जो कि आवाम की मतलब है कि मुफाद में काम करे और उसके लिए काम करता रहे. उसके मिसाल हमारे सामने है चाइना, जो आज तक उनकी आर्मी जो है उनके मुल्क मफाद के लिए काम कर रही है, और इतना तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया कि अमेरिका तक उसकी तरक्की से परेशान है और उसकी तरक्की से कर रहा है. इसका जवाब आपसे चाहिए. आप मुझे 14 साल दिलवाना चाह रहे हैं या 26 साल? आपकी मर्जी है. देखिए, मैंने तो पहले कहा यू आर वेरी आउटस्पोकन. अगर देना चाहे तो दे दें. मैं आपको पूरा जवाब देती हूँ, कोई मत फिक्र कीजिए, तशरीफ रखिए, मैं आपको बता. पीछे उन खातून को दीजिएगा बाद में. जी मैं जवाब दे. एक साहब ने अभी मुझसे सवाल पूछा था कि आइंदा क्या होगा. आपने शायद पूछा, आपने पूछा था आइंदा. देखिए, आइंदा क्या होगा. अब जो सिचुएशन हमारी है, हम ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में है ये मुल्क कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो शायद हमारी अपनी एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाएगी. बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है. इकोनॉमिकली बहुत ही बुरी हालत है हमारी. और अभी तो चाहिए ये था कि अपने सब जो दुश्मनियां हैं, अपनी तफरक़ात अलग करके सारी पार्टीज इकट्ठे होकर के एक नेशनल गवर्नमेंट बना करके मुल्क को चलाएं. ये होना चाहिए था. समथिंग लाइक दिस. जिस तरह के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल को उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बना करके उसको दे दी हुकूमत, और उसने बाद में जो किया कारनामा अंग्रेज़ों के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी. लेकिन हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं बदकिस्मती से बहुत ही सेल्फिश लोग हैं. उनको अपने इतने इंटरेस्ट होते हैं कि वो ये नहीं करना चाहते. इसी तरह चलेगा और होगा यही कि इवेंचुअली जो चौधरी निजामुद्दीन ये क्या कह रहे थे साहब, तो वो फिर वो कहेंगे भी ठीक है, जिस तरह है वो होने दो, और एक हुकूमत बन जाएगी. उसको 5-10 महीने देखेंगे. अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो दोबारा इलेक्शन करवा देंगे. यही होगा. जी आपका जवाब दे दूं. ऑन अ सीरियस नोट, देखिए, पाकिस्तानी फौज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री इन द कंट्री. रिमेंबर दैट इन द वर्ल्ड. मेरा सवाल ये, जब तक वो अपनी फौज की इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं
वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हिंदुस्तान जैसे दुश्मन से डील करते हैं और आपका जहाज उड़ के उनका बंदा अरेस्ट करता है, तो वो फौजी अपने काम में बहुत माहिर हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। जब इंटरफियरेंस सिविल का जहाँ तक है मामला, इसमें दुनिया भर में पीछे होते हैं ये इदारे जो अपनी हुकूमतों को गाइड करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे एडवाइजेस देते हैं। हमारे यहाँ मसला थोड़ा बढ़ गया, चूंकि वो बढ़ गया है, ओपनली अगर हमीद गुल कह रहे हैं कि मैं 16 सीटें दिलवा रहा हूँ, और ये चीज़ें उनके परसेप्शन पे, उनकी इज्जत पे हर्फ आता है। तो कहने का मकसद ये, शाहिद साहब ने कहा, इंटेलेक्चुअली ये हमारे पॉलिटिशियंस की गलती है कि वो उनके दर पे जाते हैं, उन्हें हाजिरी दे के कहते हैं जो चाहा वो हम मानेंगे। यहाँ आपको सही बात है, इंटेलेक्चुअली आप एक स्टैंड ले लें और उस स्टैंड पे कायम रहें और आइन पे चलें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इदारा नहीं पूरी तरह मान रहा या इम्प्लीमेंट कर रहा है। 90 दिन में इलेक्शन होना थे, नहीं हुए, 100 कबाहतें, 100 एक्सक्यूजेस दिए गए, आपकी जुडिशरी ने भी दिए, आपकी सर्विंग एग्जीक्यूटिव ने भी दिए। कहाँ लिखा है कि 3 महीने के लिए केयर टेकर आएंगे और साल भर बैठ के हर अय्याशी करेंगे? मैं इसमें मैं ऐड कर दूं, जरा सा छोटा सा मैं ऐड कर दूं इसके अंदर। इसके जो बात हुई है कि ये फौज जो है ये प्रोफेशनल फौज है और प्रोफेशनली दे आर द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ उठा के देखा है? हम जो लेते हैं मिलिट्री एकेडमी के अंदर, वो ओथ में क्या आखिरी जुमला जो है उस ओथ का, वो ये है, आई शैल नॉट इंटरफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पॉलिटिकल मैटर्स। ये डायरेक्टली ओथ है कसम के ऊपर। अगर सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करा दें, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इससे पहले सर मेरा मुजाहिद साहब आपसे क्वेश्चन है। एक मिनट मुझे मैं बता दूं कि जब जनरल मूसा साहब गवर्नर हुए तो जब उन्होंने जलसों वालों से खिताब किया तो मैं जाके अयूब खान से पूछा कि आप लोग हमें तमाम ट्रेनिंग देते हैं, हमें तब करना था, ऐसा करें ये जो हमारा जो मजमून है इसमें सियासत को क्यों नहीं रखते ताकि हम सियासतदानों से भी निपट जाएं। बेचारे मासूम आदमी थे जनरल मूसा, अयूब खान उससे ज़्यादा मासूम थे, क्या जवाब देते? जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नाजिया हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा पहले मुजाहिद साहब आपसे है कि 2018 और 2024 के इलेक्शंस में आपको मेजर फ़र्क क्या है? क्या ये दोनों इलेक्शंस पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं है या मिलिट्राइज पॉलिटिक्स नहीं है? और दूसरा चीज़ मुझे गवर्नमेंट के लोगों से पूछना है कि इनकी इंटेलेक्चुअलिज्म, पैट्रियटिज्म, एक्टिविज्म सब 60 साल के बाद क्यों जागती है? थैंक यू जी। अब आपने क्योंकि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का बात की है, मैं तो बरेलवी हूँ, मैं तो इसका डायरेक्ट जवाब दूंगा नहीं। तो दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा था, प्लीज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2018 इलेक्शंस एंड 2024? क्या ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की मैनूवरिंग नहीं है मिलिट्राइज पॉलिटिक्स में? कहते हैं 2018 का इलेक्शन हो या 2024 का, इनका ख्याल है, सॉरी टू से, वैसे मैं आमतौर पे हो सकता है ये कहता अगर बाकायदा किसी को पंजाबी या सिंधी या बलोची कहकर नहीं करने, लेकिन इनका ख्याल है कि पंजाब की जो इस्टेब्लिशमेंट है दोनों ने मैनूवरिंग की 2018 में भी, 2024 में। मोर ओवर ये कि कराची में 11 नशस्तें शायद 2018 में पीटीआई की नहीं थी, दिलवाई गई, बलूचिस्तान में दिलवाई गई, इसी तरह की जिस तरह अब 17 नशस्तें उन्हें दिलवाई गई हैं। देखिए, जहाँ तक कि ये जो परसेप्शन है कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करता है, देखिए पंजाब मेजर प्रोविंस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। जिस तरह आप इंग्लैंड में देखें, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है, ये डिफरेंट जगह हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस इंग्लैंड का होता है। ये तो जो बड़ा प्रोविंस होता है उसका यकीनन मेजॉरिटी की वजह से। टॉकिंग अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, पंजाब का आवाम नहीं है, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट तो पंजाब से ही बना है, तो वो अपनी जगह उसका असर रसूख रहेगा। लेकिन ये कहना कि पंजाब दूसरों के खिलाफ काम करता है, ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। वो मे भी शुरू में होता था, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो चीज़ कहना। जैसे साहब, अनवर मसूद साहब। देखिए, मैं तो बहुत बेसिकली ये जो सवाल है इसके अंदर ज़्यादातर प्रोविंशलिज्म के ऊपर ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रोविंशलिज्म या एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस को कोई इफ़ेक्ट कर रहा हो।
आप अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 के अंदर जो भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसके अंदर हम भी कहते हैं थोड़ा बहुत रिगिंग हुई है और सब ये कह रहे हैं, मगर सिंध के आप अगर उठा के देखिए तो सिंध में एक पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी है और फिर हम ये कहेंगे कि सिंधियों का इसमें रोल था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये पंजाबी, सिंधी, पख्तून, आई थिंक वी शुड टेक दिस आउट ऑफ आवर माइंड। वी आर ऑल पाकिस्तानीज गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और उसी तरीके से हमें रहना चाहिए और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस किस्म की बात होनी चाहिए। जस्टिस साहब यही तो नहीं हो रहा। नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है। आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिशियन से। यहाँ बैठे हुए अफराद भी इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं। हुज इस्टेब्लिशमेंट, खुल के नाम क्यों नहीं लेते? एक चीज। दूसरे आप ले दीजिए। बिल्कुल मैं ले लेता हूँ। मैं नहीं, सॉरी, आप रिप्रेजेंटेटिव, आप हम लोगों को ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि आप ये बात कहेंगे। सेकंड थिंग इज कि देखिए ये बदमस्त हाथी जो है एस्टेब्लिशमेंट का, इसको कैसे सेटल किया जाएगा? आप लोग बहुत आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि ओथ के ऊपर मान ले। ओथ पे मानना होता तो यहाँ तक पहुंचते, या अगर हम कहते रहे जबानी उससे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिकली कैसे ये हैंडल होगी सिचुएशन? मैं बुढ़ा हो रहा हूँ इस मुल्क के अंदर रहते हुए, आप लोग माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैग्मेटिक सोल्यूशन होगा क्या? आइडियलिस्टिक बातें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं जी, ओथ को फॉलो कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लें। लोगों ने वोट डाला, उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने वही किया जो उन्हें करना था। जी, सवाल में जवाब दे चलें। आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह देता हूँ। यही चाह रहे थे आपके नाम? नहीं, मैंने तो कहा एजेंसीज जो कैलकुलेशन, जो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी। आई टुक द नेम। अब आप कह रहे हैं कि मैं 18 एजेंसीज के नाम लूं, तो मुझे तो 2 के आते हैं, उससे ज्यादा मेरी इंफॉर्मेशन है। 2 में भी 1 का नाम सिर्फ काफी है। जी, और इतने सारे हाथ खड़े हुए हैं और 3 मिनट है, क्या किया जाए? सवाल जवाब, हाँ, माइक दीजिए जल्दी से, जल्दी सवाल ले लेते हैं, जवाब इकट्ठे देते। सर, अतर अबड़ो हेयर, बेसिकली फ्रॉम शिकारपुर सिंध। मैं यहाँ पे वकालत करता हूँ कराची में। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मैंने जब से शऊर हासिल किया है या देखा है शऊर को, तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो फौज है या इस्टेब्लिशमेंट या जिसको भी कह रहे हैं हम, ये जाहिर सी बात है इतने शऊर याफ्ता हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने पढ़े लिखे हैं जो हमें कुछ समझते ही नहीं है या सियासतदानों को। तो इनको ये नहीं करना चाहिए कि अपने अंदर इदारों में पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटीज़ खोल दें ताकि हम भी पढ़ लें, कुछ उनसे सीख लें, ताकि उनकी जान छूट जाए। इस पे थोड़ा कमेंट करें प्लीज। इनको दे दें सवाल, ऑब्जर्वेशन इधर दे दें। आप अगर बुरा ना माने तो मैं सवाल कर लूँ मुजाहिद साहब। मैं जी। अच्छा, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अभी कब से देख रहे हैं, ये खासतौर पे शाहीन साहब आपसे सवाल है क्योंकि आप यहाँ पे मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, तो हम अभी इमरान खान की बात कर रहे हैं और जैसे कि वहाँ पे लेबल हो चुका है बेसिकली पॉपुलिस्ट नैरेटिव और कल्ट है। तो मीडिया को अगर हम इस वक्त गौर से देखें और न्यूट्रल अगर उस पर देखें लाइन पे, तो मीडिया इस वक्त ऐसी पोजीशन क्यों इख्तियार कर रहा है कि अवाम को बनिस्बत ये बताने के जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है, ही वॉज द बेनिफिशियरी जब उस टाइम हो रहा था। अभी आपने कहा उसके बाद कौन कौन से केस नहीं बना दिए, तो 21 केस तो उन्होंने भी दूसरों के ऊपर बनाए, 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ। तो ओपिनियन नहीं दे रहा, सवाल ये है कि मीडिया क्यों ये नहीं कह रहा हाँ ये गलत है पर ये भी हुआ, क्योंकि हमारी यादाश्त कमजोर है, हम भूल जाते हैं कि क्या क्या इमरान खान के दौर में हुआ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप आखिरी एक इनको दे दें प्लीज। ये बहुत देर से कह रहे हैं बिना क्लास, प्लीज इकट्ठे दे देंगे ना, वरना ये कहेंगे जी सवाल करने नहीं दिया। अच्छा बरेलवी साहब, मैं खुद PS 108 से इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ। जो बात हुई है कोई कमिश्नर साहब की, तो कमिश्नर साहब का रोल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो DC साहब हैं अल्ताफ सोडल साहब, उन्होंने जो इस इलेक्शन को रन नहीं किया है। यहाँ पर जो है एक हेस्को से साहब आए हुए थे, उनका नाम था दीन मोहम्मद साहब, उन्होंने इस सारी इलेक्शन की प्रैक्टिस को किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज मुझे याद आ रहा है PTI के वो 2013 में जो उन्होंने पैंतीस पंचर की बात की थी ना। अच्छा, अभी बात हुई है कि बिल्कुल फॉर्म 45 मिले हैं लोगों को,
फॉर्म 45 मिले हैं इस दफा, वरना 18 में तो फॉर्म 45 ही नहीं मिले थे, आरटीएस ही बैठ गया था। अच्छा, फिर मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मुझे अंदाजा है एक सिंगल कंप्लेन मौजूद नहीं है पीटीआई की या किसी भी जमात की जो धांधी धांधी की बातें कर रहा है। उन्होंने किसी आरओ के पास कंप्लेन नहीं की है कि हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, हमें रिजल्ट नहीं दिया गया, तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। और फिर मुझे ये बताएं, अगर केपीके में 57 जो है मुकदमा दर्ज हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने। केपीके में इलेक्शन ये जरा प्लीज एक खातून को जरा प्लीज, वक्त कम है, आप थैंक यू खातून लास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समरीन हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ। आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर समरीन हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि वाकई ये जो कल्ट है या ये सब कुछ है, हम क्या बेनज़ीर भुट्टो का आना भूल गए कि जिस वक्त उनके ऊपर इतनी कदगन थी और जिस वक्त वो आई थी उनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ था। हम क्या वो इलेक्शन भूल गए जो 2018 में हुए थे? हम क्या अल्ताफ़ हुसैन को की तस्वीरें तक टीवी पे लाना भूल गए? हम वो सारी चीज़ें भूल गए। देखिए, ये तारीख का हिस्सा है। अभी आपने बहुत आसानी से कह दिया कि 15 सीटें और इस तरह से सारा कुछ, लेकिन हम आपको क्या याद नहीं, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इस पूरी पॉलिटिक्स में रहे हैं, कराची और सिंध की और पाकिस्तान की, कि किस तरह से उन्हें कदगन किया गया, किस तरह यहाँ के अगर ऑक्सफोर्ड मुझे इजाजत देता तो मैं सिर्फ सवाल और सवाल ही सुनता रहता, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि ये गुफ्तगू जो सड़कों पे होती थी आज इस बंद हॉल में हुई है। किसी पे कोई कदर नहीं लगाया, सवाल पे पाबंदी नहीं लगाई। और मैं सॉरी टू से मुझे बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? प्लीज, आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन, बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? चलिए मैं आपके ताली बजाता हूं सवाल। मैं आप सबसे ज्यादा जस्टिस मंसूर साहब, शायद उस्मानी साहब, और ये बड़े प्रोग्राम मैंने स्क्रीनों पे किए, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोग्राम आज का था कि इलेक्शन को किस किस जाविये से देखा जाए। सबसे ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना लाइवली रहा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।
advertised to Sheikh Zaid, and moderator is Amar Fizado. Would you please take your seats? Amar, sorry, Amar Fizado. Sorry, I'm so sorry. I would like the panelists to come on the stage too. Translations of Sindhi classics from Shah Latif to Sheikh Hayas, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। मौजू बहुत बड़ा है और वक्त मुख्तसर है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें। शेख हयाज, शाह लतीफ़ और शेख हयाज सिंधी लिटरेचर के दो माइलस्टोन्स हैं जो इस पूरे इराक़ के कवर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे शायर, अदीब, कहानीकार हैं जिनका भी ज़िक्र ज़रूरी है। लेकिन इस पूरे सेशन में हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सारे अदीबों के नाम गिनवाएं और सारे ट्रांसलेटर्स का ज़िक्र करें, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जो सिंधी अदब का एसेंस है, जो सिंधी अदब का मिजाज और मैसेज है, वो हम अपने रीडर्स तक पहुंचा पाएँ। और जब हम सिंधी क्लासिक का ज़िक्र करते हैं तो जो सिंध का कलोड़ा पीरियड है उसमें एक ट्रायंगल था शाह लतीफ़, सचल और सामी का, जिनको हम माइलस्टोन समझते हैं। और जब फिर हम शेख हयाज तक आते हैं तो शेख हयाज सिंधी के क्लासिक शायर भी थे और सिंध के जदीद शायर भी थे। और अगर हम शाह लतीफ़ की बात करें तो शाह लतीफ़ को हम सिंध पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का अजीम शायर समझते हैं। और आज भी हम शाह लतीफ़ और शेख हयाज से इंस्पायरेशन लेते हैं, और जो आज का जदीद तरीन अदब है वो भी इन शायरों से इंस्पिरेशन लेता है। हमारे पास जो पैनल है वो भी बड़ा डाइवर्सिफाइड है अपनी अपनी फील्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ बुखारी साहब जो नावल निगार हैं। कल उनके नावल को KLF में अवार्ड भी मिला है, और वो जो है सहाफ़त में भी रहे हैं। उनके बहुत और नावल जो हैं दूसरी ज़बानों में तर्जुमे भी हुए हैं। एक्टिविस्ट हैं और सखर आर्ट्स काउंसिल से भी वाबस्ता हैं आजकल। उसके साथ हमारे साथ अतिया दाऊद हैं जो पाकिस्तान में अगर हम फेमिनिस्ट वॉइसेस का ज़िक्र करें तो वो उसमें एक नुमाइंदा नाम है। इसके अलावा वो नसर नवीस भी हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी ऑक्सफोर्ड की तरफ से शाया हुई। इसके अलावा वो ड्रामा नवीस हैं और सिंधी अदब का मुख्तसर जायज़ा भी उनकी एक किताब है जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से शाया हुई। उनकी शायरी भी उर्दू, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है। उसके साथ हमारे साथ नूरुल हुदा शाह साहबा हैं जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। वो ड्रामा नवीस हैं। उनके ड्रामे आपको याद होंगे, जंगल हो, मारवी हो, अब मेरा इंतज़ार कर। इसके अलावा अफसाना नवीस
शायरा हैं। इन सब खूबियों के साथ साथ हम समझते हैं कि ऐसी शख्सियात की सोसाइटी को बहुत ज़रूरत होती है जो एक सिमत तय करती हैं, और इनकी जो राय है वो हमारे लिए हमेशा गाइडलाइन रही है। तो हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। मुमताज़, जैसे हमने ज़िक्र किया कि हम शाह लतीफ़ और शेख हयास पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक ओवरव्यू दें कि ये सारा क्लासिक पीरियड कौन से इसमें नुमाइंदा नाम थे और उनकी ट्रांसलेशंस पे कितना काम हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। पहिरियों सभिनी खे भलीकार, जेके हिते दोस्त मौजूद आहिनि पंहिंजी मादरी ॿोली में भलीकार चवंदे असां मौजू की तरफ आएंगे कि शाह अब्दुल लतीफ़ हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन है। जो सिंधी अदब की एक बड़ी इमारत शाह अब्दुल लतीफ़ से शुरू होती है। तो जब शाह अब्दुल लतीफ़ ने ये बात की थी, साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी, तो ये लाइन हमें ये समझना चाहिए कि जो सिंधी अदब है ये शाह लतीफ़ से जो एक बड़ी शक्ल अख्तियार कर गया, एक माइलस्टोन बन गया। लेकिन ये बात यहीं से शुरू नहीं होती। ये हमें सदियां पीछे जब हम देखते हैं तो सिंधी अदब हमें वहाँ भी इसी तरह बड़े ख़यालात के साथ मिलता है, और न सिर्फ यहाँ मिलता है पर दुनिया के उस वक्त जो बड़ी ज़बानें हैं उसमें हमें मौजूद मिलता है। जब उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सल्तनत बड़ी फ़ारस की सल्तनत थी, फ़ारसी में मिलते हैं, अरब जो वर्ल्ड थी उसमें मिलते हैं, और उसके अलावा रोमन एम्पायर थी, रोमन में भी मिलते हैं, और टर्किश एम्पायर थी उसमें भी हमें मिलते हैं। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसने आलम सब आबाद की जब बात की, तो जब हम जाते हैं विल ड्यूरेंट की किताब हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसने लिखा है कि, और ये किताब में वो अकेला सिंधी अदब है जिसने उसने सिंधी अदब से कोट किए हैं वर्सेस उसमें, कि वो 2000 साल कबल मसीह यानी कि आज से 4000 साल पहले जो सिंधी अदब है उसको उसने कोट किया है, और उसको उसने कहा है कि ये ऋग्वेद की बुक 1 जो है वो 2000 साल कबल मसीह है। तो इसका मतलब ये बनता है कि हम जब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो वो 1900 कबल मसीह में ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब है कि जब मोहनजोदड़ो के उरूज का आखिरी हिस्सा था, तो तब ये जो ऋग्वेद की ये जो शक्ल जो बाद में उसमें ऋग्वेद में शामिल हुई, तो ये शायरी मैं उसका एक मुख्तसर सी मिसाल यहाँ देना चाहूँगा। उसने अंग्रेज़ी में लिखी है लेकिन उसकी सिंधी में मैंने ट्रांसलेशन थोड़ी की है, लेकिन मैं उसके कुछ चंद जो है आपको ये सुना। From the dead hand I take the bow the wielded, to gain for us dominion, might and glory. Though there we here rich in heroic offspring, will vanquish all assaults of every foeman, approach the bosom of the earth, the mother. तो ये इसकी तफसील ये, तो इसकी मैं थोड़ी आपको जो तर्जमा है सिंधी में भी है, उर्दू में भी, मैं उर्दू में आपको बताता जाऊं कि ये कटा हुआ हाथ उस योद्धे का है जिसने अपनी वतन की अजमत पे सर दिया, और मैं वहाँ से उसकी कमान उठाता हूँ, वो वहीं है, मैं यहीं हूँ, और हम हिम्मत वाली औलाद हैं। हर दुश्मन के हर हमले को रोकेंगे, धरती माँ के गोद तक पहुँचने तक। ये धरती दूर दूर तक फैली हुई है, सबसे उत्तम है। जवां मर्द और मेहरबान नरम पशम जैसी है, जो मेरी पहचान है और जो मेरी पहचान ख़त्म होने से मुझे बचाएगी। ए धरती, तुम खुद को और कुशादा करो और मुझे ऐसे पकड़ो कि मैं तुम्हारी मेहरबानी से निकल न पाऊँ, ऐसे जैसे कोई माँ अपने बेटे को गोद में भरती है। ए धरती, इस आदमी को भी अपने आप में समो दो। तो ये वो क्लासिक के हमारी जो धरती से मोहब्बत का इजहार है जो हमें शाह लतीफ़ के हाँ भी मिलता है। और यहाँ तक बात नहीं ठहरती, फिर हम जब जाते हैं, आप देखेंगे एक हिस्ट्री ऑफ नावल की एक इंसाइक्लोपीडिया 2 वॉल्यूम्स में है, तो उसमें लिखते हैं कि उसकी फर्स्ट वॉल्यूम में है, स्प्रिंगर्स ने वो छपी है, कि जो दारा आज़म जिसको हम कहते हैं, दारोश और साइरस आज़म उसका जो बाप था, तो वो अपने दरबार में सिंध से उसने उसको सिंधियन से लिखा है ट्रांसलेशन में,
उनको बुलाते थे और उनसे सिंध के लोक अदब को ट्रांसलेट करके फ़ारसी जो उस वक्त की होती थी उसमें सुनते थे। तो ये हमें एक रिकॉर्डेड चीज़ें उस वक्त से मिलती है। फिर हम हमारा एक बीच में मुख्तलिफ, क्योंकि सिंधी के डायलेक्ट तब्दील होते रहे, कभी पहलवी, कभी संस्कृति, प्राकृति, इस अंदाज में कहते रहे। फिर हम जब आगे आते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा जो आज के दौर तक उसका असर है वो मिलता है। एक किताब है सिंध इंद के नाम से, जो 7वीं सदी ईस्वी में 8वीं सदी ईस्वी में खलीफे मंसूर को मिलती है। और कणका नाम का एक यहाँ का एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है जो उसको नसरी अंदाज में लिखता भी है और उसके में जदवल्स भी देता है, जिसको अफसानी अंदाज भी उसमें शामिल है। तो वो जब वहाँ पहुँचती है तो पहुँचती वो अल खवारिज़मी के पास पहुँचती है। ये ऑक्सफोर्ड ने जो अल खवारिज़मी के लिए एक बायोग्राफी लिखी है उसमें उसके रेफरेंस है, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस में उसके 22 जगहों पर आप जब जाएंगे तो उसमें 22 जगहों पे उसके रेफरेंसेस है। टाइम कम होने की वजह से मैं वो रेफरेंस आपको नहीं सुना रहा, लेकिन उसकी आपको एक बेस बताता हूँ कि वो सिंध इंद है, वो जब अल खवारिज़मी की ट्रांसलेट होके इटालियन और जर्मनी में गई तो उसको उन्होंने अलजबरा बनाया, और अलजबरा वो बेस है जैसे अलगोरिथम और पैथ्रॉन लैंग्वेज बनी है। तो वो नोट्स थे जो इन सिंध की एस्ट्रोलॉजिकल किताब थी उसे बने, जो खुद ऑक्सफोर्ड की 3-4 किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस बताता है। तो ये सिंधी लिटरेचर की वो चीज़ें थी जो उसमें आई। फिर हम जब क्लासिकल दौर में आते हैं, मैं बीच का दौर छोड़ के जिसमें अरब यहाँ आए, तो यहाँ से अरबी में भी यहाँ के जो गाह होते थे और डिठ की जो क्लासिकल अदब था जिसको हम यूरोप में जो 21वीं 17वीं 18वीं सदी में आया रियलिस्टिक जो रियलिज्म का हम तहरीक कहते हैं, वो हमारे पास 700 ईस्वी में मौजूद थी डिठ के तौर पे। डिठ यानी कि देखी हुई चीज़, जो वो रियलिज्म जिसको कहते थे। तो उसकी चीज़ें भी फिर अरबी में तर्जमा हुई, और अरबी से जो दूसरे उस वक्त ज़बानें जो डोमिनेटेड लैंग्वेजेस थी तो उसमें भी आ गई। और जो सिंधबाद का सफ़र में जो कहानियाँ मिलती हैं वो मोस्टली उनकी जो लोकेशन जिसको सेटिंग कहते हैं वो सिंध से रिलेट करती हैं। फिर वो पूरी दुनिया में वो सिंधबाद के नाम से इसीलिए हुई कि वो जो फ़ारस का जो लिटरेचर था उससे उसकी ओरिएंटेशन बनी थी। तो हम फिर आते हैं इसमें शाह करीम बुलड़ी वारो, जो हमारा एक बहुत क्लासिकल शायर था जिससे शाह लतीफ़ की रिलेशंस बनती है। तो उसका एक पहली फ़ारसी में उसके क्रिटिकल किसका किताब कहते हैं जिसको बयानुल आरफीन कहा जाता है, वो सामने आई। जब वो फ़ारसी में पहुंची, वहाँ से अरबी में पहुंची, तो वो परेशान हो गए कि सिंधी में इस लेवल की शायरी है। तो वो जो उस वक्त के बड़े फ़ारसी शोरा होते थे तो उससे उसकी रिजल्ट सामने आ गई। तो इसी तरह हमारे वो क्लासिक जो है, फिर काजी काजन जो हमारे दौर का आता है, शाइनात रिजवी आ गया। तो इनके क्लासिक्स भी फ़ारसी, अरबी और फिर रोमन में भी जो यूनानी लैंग्वेजेस थी उसमें शामिल हो गई। और जो उस वक्त वेल्स लैंग्वेजेस या जो यूरोप की काउंटीज़ जिसको हम कहते हैं उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज नहीं है। आयरिश अलग है, स्कॉटिश अलग है, स्कैंडिनेवियंस अलग हैं, हर एक की अपनी अपनी वो लैंग्वेज है। तो उसमें से भी हमें उनके जो है अस्कार मिलते हैं। तो यूँ ये हमारी जो पूरी जो पस मंज़र है शाह लतीफ़ की जो इमारत खड़ी हुई है एक बड़ी हमारे सामने, वहाँ तक पहुँची। शुक्रिया मुमताज़ बुखारी साहब, आपने पूरा ओवरव्यू दिया। जब हम भिटाई की बात करते हैं, शाह लतीफ़ की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल स्टेटस को से हटकर बात करते हैं। उनका एक बैत है जो हसन मुश्तबा ने ट्रांसलेट किया था, उनकी बुक है ग्लिम्स ऑफ बिलव्ड, जो अमेरिका में शाया हुई शाह लतीफ़ के हवाले से। उसमें भिटाई का एक बैत है, अख उल्टी धार वह उल्टो आमसी जे लहवारो लोक वहे तू ऊंचो वह ओभार मंझा नोच निहार पुर पुठीरो पिरिय के। मीन्स हैव अपोजिट आई, walk opposite with people. If the people swim low current, you swim against the tide upward. Have a glimpse inside, walk towards your beloved backward. तो ये शाह लतीफ़ की इनफरादियत थी कि वो रवायती सोच से हटने का दर्स देते हैं और एक अपनी इंसाइट की बात करते हैं। तो अतिया मैं आपसे पूछूंगा कि जो शाह लतीफ़ का जो दौर था उसका माहौल क्या था
और कौन से वो मौज़ूआत थे जो शाह लतीफ़ अपनी शायरी में लेकर आए जिसकी वजह से हम उनको एक अजीम शायर कहते हैं, और उनका ट्रांसलेशंस क्या उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है? सबनी जी मेहरबानी, डॉक्टर तनवीर, अकीला और मेरी वाइफ की सहेलियां और तमाम हाजरीन की मेहरबानी कि वो हमें सुनने के लिए यहाँ हैं। जी जो भिटाई का दौर था और वैसे ओवरऑल जो सिंधी अदब का दौर रहा है, और मैं समझती हूँ कि सिंधी अदब से अगर मज़ाहमत को निकाल दिया जाए तो सिंधी अदब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा उसके अलावा, क्योंकि इस तरह का जो अदब रहा है, जो अदब बराए अदब कहलाता है, उसने कभी भी वो कभी मेन स्ट्रीम पर सिंधी अदब में आ ही नहीं सका। तो मज़ाहमत और मज़ाहमत सिंधी अदब में क्यों आई है? इसलिए कि सिंध का तारीख़ी पस मंज़र है कि वो एक ज़रई और एक खुशहाल इलाका था। उसके हर तरफ से उसके समंदर और दरिया और जो पहाड़, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आते थे और हमला आवर होते थे, और यही एक सिंध का अलमिया रहा है। और इस अलमिया की वजह से जो मज़ाहमत सिंध की धरती पर उभरी है वो सदियों से जारी है। तो भिटाई से पहले भी कई सदियां पहले भी ये मज़ाहमत रही, लेकिन भिटाई के आते हुए और भिटाई के शऊर के मुताबिक वो मज़ाहमत हमारी उरूज पर पहुंचती है। तो जब भिटाई आया है तो उस वक्त जो है वो अरगून दौर जो है वो गुज़र चुका था, जो कि सिंध के लिए सबसे ज़्यादा हौलनाक किस्म का दौर रहा था। और इसके अलावा जो तालपुर दौर था उसमें भी काफ़ी एक तरह से मुजालिम जो थे वो जारी थे। तो इसमें जो भिटाई को ने जब वो शायरी की है तो जो सिंबॉलिक तरीके से या जो मज़ाहमत थी उससे पहले जो मज़ाहमतें जन्म ले चुकी थी, मसलन मंसूर जो है वो अलहाज मंसूर, और उसको भी वो इस्तारे के तो उन पर उन्होंने शायरी की, मुल्क सारा मंसूर तुम कितने लोग ज़बह करोगे। तो इस तरह से उसके बाद फिर शाह इनायत, जब शाह इनायत भी भिटाई से पहले के हैं और उन्हें घाने के अंदर पिसवाया गया था। तो इस तरह के ये जितने भी ये थे उन लोगों को उन्होंने जो है वो अपनी शायरी का इस्तारा बनाया, अपना मौजू बनाया और उस पर वो शायरी करने लगे। तो वो ज़माना एक बहुत ज़्यादा शदीद अज़ियतनाक और तकलीफ़दा था जिसमें वो सारी शायरी कर रहे थे, और उसमें फिर उन्होंने जो अपने मौज़ूआत चुने। अच्छा, भिटाई जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ ये बहस जारी रहती है कि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो यकीनन पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने रूमी का असर लिया है। उन्होंने अच्छा इसके अलावा जो रूमी का उन्होंने ख़ुद असर लिया, फिर भिटाई ने ख़ुद काफ़ी लोगों पर अपना असर छोड़ा है। तो इस माहौल को वो बयान करते रहे हैं। उसके अलावा फिर जो जितने सुर थे, जो हमारे पास लोक कहानियाँ थी, उमर मारवी, ससी पुन्नू, ये तारीख़ी कहानियाँ थी सारी, जिसमें 7 सुरमियाँ उनकी मशहूर है और बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन जिस तरह से उन कहानियों में वो सिंध की तारीख़ बयान करते हैं, वो हमें वो पूरा मंज़र हमारे दिमाग में घूम जाता है, और वो उसमें वो कहानी भी अपनी पूरी सच्चाइयों के साथ मौजूद है। मारवी मौजूद है और वो अपने किडनैपर जो उसको किडनैप करता है उमर, उसके ख़िलाफ़ वो उससे मुखातिब होती है। लेकिन हमें ये भी होता है कि ये एक तरह से मज़ाहमत है उस पब्लिक की अपने हुक्मरान के ख़िलाफ़। तो इस तरह से वो अपनी हर मज़ाहमत में, हर कहानी में वो मौजूद हैं। तो वो दौर जो है वो इतनी सदियों का दौर भिटाई के सिमट आता है। तो इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि अगर भिटाई को समझने के लिए सिर्फ सिंधी ज़बान का होना ज़रूरी नहीं है। सिंधी ज़बान होना एक एजाज़ की बात है, लेकिन उसके लिए उस पूरी तारीख़ से जानकारी भी इतनी ही ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये लोग कौन थे, मंसूर कौन था, शाह इनायत कौन था, मारवी कौन थी, ससी कौन थी। तो इसके लिए पूरी तारीख़ जो है वो सिमट कर उसके पास आती है।
बिल्कुल अतिया, और शाह लतीफ़ को समझने के लिए, हमारे क्लासिक्स को समझने के लिए सिंध को समझना, सिंध की तारीख़ और जोग्राफ़ी को समझना भी ज़रूरी है। शाह लतीफ़ की शायरी में जो नेगलेक्टेड लोग हैं उनको भी मौजू बनाया गया है, और शाह की सारी शायरी का फोकस इंसान रहा है। उनका एक बैत है, कोह थो कागर कोरिएं वेठो विञाई मस दूर त्याई डिस अखर जियाई जोड़िया, यानी तुम क्यों कागज़ काले करते रहते हो और स्याही का ज़िया करते रहते हो, वहाँ क्यों नहीं देखते जहाँ से अल्फाज जुड़ते हैं, यानी इंसान से जुड़ते हैं। आगा सलीम ने इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है, वाई यू स्पॉयल पेपर एंड वेस्ट इंक, ही इज़ बियॉन्ड दैट फ्रॉम वेयर वर्ड्स स्प्राउटेड। सो मैं अब नूरुल हुदा शाह साहिबा से पूछूंगा कि ये जो शाह लतीफ़ का तर्जुमा है ये क्यों ज़रूरी है और इसकी वैल्यू क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आप आज अपने दौर के जिस मरहले पर बैठे हैं, खड़े हैं, आपको इस वक्त मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। हर वो कौम जिसके दरमियान बाशऊर शायर मौजूद रहा हो, वो उस कौम की ज़बान, बोली, उस कौम का शऊर वो कभी मर नहीं सकता। अतिया ने अभी मज़ाहमत की जो बात की, शाह लतीफ़ की शायरी, उसका तर्जुमा क्यों ज़रूरी है और क्यों उसके तराजुम हुए हैं, उस पर बात करने से पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि इस शायर में है क्या, हम पागल क्यों हैं इस शायर के पीछे। कई अबियात हैं जिसकी मिसाल देते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा कमाल ये है, मैं एक बैत की नसरी तशरीह सिर्फ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से आप शाह लतीफ़ की रूह को समझ लीजिए। सूरह अराफ की एक आयत है, अलस्त बिरब्बिकुम, जिस आयत की तशरीह और उस मानी जो हैं वो कुछ यूँ हैं कि आदम के औलाद पीछे, आदम से जितनी भी औलाद, हम सब, मैं, आप, हम सब, जितनी भी औलाद तख्लीक होना थी, वो तमाम, उन तमाम की रूहों को रब के सामने वो पेश हुई। रूह की तख्लीक पहले हुई और वो तमाम अरवाह रब के सामने, आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको शाह लतीफ़ की वो मंजर कशी समझाऊंगी। वो तमाम इंसानों के अरवाह रब के सामने खड़े हैं और वो उनसे पूछता है कि बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्त बिरब्बिकुम। तो अरवाह ने कहा कि कालू बला, हम गवाही देते हैं खुद पर कि बेशक तू हमारा रब है। अब शाह लतीफ़ क्या कहते हैं, इस मंज़र को इमेजिन कीजिए। कहते हैं कि जब मेरी रूह मेरे रब के सामने पेश हुई, दुनिया में इंसान अभी तख्लीक सिर्फ आदम हुआ है, जब मेरी रूह मेरे रब के सामने पेश हुई और उसने मुझसे पूछा, बता क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ? तो मैंने कहा, कालू बला, बेशक तू मेरा रब है। इस बैत की आखिरी सतर लिखते हैं, यही वो लम्हा अज़ल था जब मैंने अपने हम वतनों से वादाए वफा किया। ये हैं शाह लतीफ़, तख्लीक से पहले तख्लीक पर खड़े,
रब के सामने एतराफ़ कर रहे हैं कि बेशक तो मेरा रब है, और कहते हैं उसमें खुद कि वो उस एतराफ़ का वो लम्हा था, यानी लम्हा अज़ल था, जब मैंने अपने हम वतनों के साथ वादा वफ़ा किया कि मैं इनका रहूँगा, इनकी बात करूँगा, इनके ऊपर अपना तख्लीकी सफ़र तय करूँगा इनके हवाले से। ये है बुनियाद शाह लतीफ़ की। अब आइए शाह लतीफ़ की तरफ मज़ीद। ये वाहिद शायर है, सूफ़ी शौरा में शाह लतीफ़ वाहिद शायर है जिन्होंने इश्क़ हकीकी में अफलाक की जानिब सफ़र नहीं किया। ये वाहिद शायर है जिन्होंने अपनी आमद को अफलाक से नहीं लिया। शाह लतीफ़ का तमाम तख्लीक, तख़य्युल, ख़याल, जज्बात, तशबीहात, इस्तारे, अल्फाज, ये तमाम उन्होंने तो धरती से, ज़मीन से लिए ही हैं। मगर इश्क़ हकीकी में महबूब को, ये वाहिद शायर है, महबूब को इंसान के कालिब में ढाल के उससे बात की है। और इंसान कौन? इस धरती का इंसान, वो नंगे पैरों वाला इंसान, वो कांटों पे चलता हुआ इंसान, वो मारुई जैसा इंसान जो महलों के सौदे, यानी बादशाह के महल में बैठाकर शाह साईं उसे उस किरदार से कहलवाते हैं कि मुझे अपने झोंपड़े ज़्यादा अजीज़ हैं तेरे महलों की निस्बत। जिन्होंने नूरी का किरदार, यानी किंग मेकर, उन्होंने नूरी को बनाया। नूरी का किरदार जो बनाया है, मैं समझती हूँ मैंने कहीं भी, मैं जितनी शायरी मेरे इल्म में आई है, मैंने कहीं भी महबूब की तशरीह के साथ कि कोझी, कुछ पंजाबी में लफ्ज़ मिलते जुलते हैं इसलिए मैं एज इट इज़ कहूँगी, कोझी, कारी, जो सड़क के, जो पगडंडी पर बैठी है मछलियों का, क्योंकि वो मछेरन थी, मछलियों का ढेर लिए और उन मछलियों की बू उसके पूरे वजूद में है। और इस पूरे वजूद में जिसमें मछलियों की बू है, जो सादा से चेहरे वाली है, बेइंतहा सादा से चेहरे वाली है। कोझी पंजाबी जो अगर कोई समझता है तो वो समझ जाएगा, सराइकी और पंजाबी, ये कोझी इंतहाई सादा चेहरे के लिए है। ये शाह साईं की तख्लीक है महबूब की इश्क़ हकीकी में, जिसे वो ढाल कर ले आते हैं इंसान के रूप में। अच्छा, इंसान के रूप में क्या ढाल के ले आते हैं? फिर कमाल देखिए, वो पूरे का पूरा इश्क़ हकीकी। आप ख़वातीन जो बैठी हैं, ख़ास तौर पर आपके साथ शेयर करूं, मुझे मालूम है आपका जो थॉट है और आप उस पर खुशी महसूस करेंगी कि वो इश्क़ हकीकी जो है वो औरत के कालिब में ढाल कर ले आते हैं। औरत जो है, और वो औरत भी एक तरह की नहीं है। अब जिस तरह हम ये बात करते हैं कि चलिए हम बहुत सारी कहानियाँ लिख लें और कहानियों पर आप कहानी पढ़ के कहेंगे कि ये तो फलां की कहानी है। अशार आपको बहुत से बता देंगे कि ये किस शायर का शेर है, लेकिन 7 उनकी हीरोइंस हैं, 7 उनकी हीरोइंस हैं। उन सब की साइकी, उन सब का लबो लहजा, उन सब की तशबीहात, अल्फाज तमाम के तमाम अलग हैं। इश्क का अंदाज सबका अलग अलग है और ये बहुत बड़ा कमाल है। फिर अब अगर देखते हैं, जब हमारे लिए शाह साईं तो इसलिए भी अहम है। सिंध हमेशा, अभी
आपके साथ मुमताज़ बुखारी ने, अतिया ने भी शेयर किया। सिंध हमेशा, मैं हर जगह जब सिंध पर बात होती है तो मैं हमारे जो उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाली जो दोस्त हैं, मैं हमेशा उनके साथ सिंध की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कर दिया करती हूँ कि सिंधी ज़बान में सिंध मोनिस है, इसीलिए सिंधी ज़बान, सिंधी शायरी में सिंध महबूबा है, माँ है, महबूबा है, औरत है। उसकी मांग भी है, शायरों ने इस तरह गाया है सिंध को, उसकी मांग भी है, उसकी नथ भी है, उसकी इज्जत भी है, उसकी असमत भी है। शाह साईं ने इसकी बुनियाद डाली है। असल बुनियाद यहाँ से शुरू हुई है, जब उन्होंने धरती को, ये कॉम्बिनेशन देखें आप कि इश्क हकीकी में और शाह साईं के बड़े वाज़े अबियात उनकी मौजूद हैं, लातादाद, जिसमें उन्होंने खुल के अपने इश्क हकीकी का जिक्र इजहार किया है, जिसमें अल्लाह से इश्क, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, मगर वो इश्क हो कैसे रहा है, ये चीज़ आप देखिए। वो इश्क औरत के रूप में हो रहा है, मुखातिब वो रब से है, लेकिन आप सीधा सीधा पढ़ें तो आपके सामने औरत का किरदार बैठा है। और फिर वो जो कैफियत हैं उनकी, वो कमाल की हैं उसमें, उनका जो इजहार इश्क है। तर्जुमों के हवाले से हम दोबारा जब इस पर आएंगे, तराजिम के हवाले से ये बात हमेशा सवाल आता रहा है। शाह साईं 1866 में ट्रंप ने शाह साईं को सबसे पहले जर्मनी से शाया करवाया। इससे पहले किताबी सूरत में नहीं थे। एक गंजनामा है, गंज है, लेकिन इस तरह से जिस तरह आज आप शाह जो रिसालो देखते हैं। आपको बताती चलूं कि ट्रंप यहाँ अंग्रेज़ के दौर में मैजिस्ट्रेट थे। उसके पास एक मुकदमा आया, जिस मुकदमे में उस बंदे ने अपना केस जिस तरह लिखा, पेश किया, उसमें उसने शाह लतीफ़ की अबियात लिखी हुई थी। उसे ट्रंप को समझ में नहीं आया कि ये इसने क्या लिखा है। उसने पूछा ये क्या है, तो उसने शाह साईं के लिए बताया कि ये कैसा शायर है। उसने कहा कि मुझे तर्जुमा करके बताओ ये क्या है। सो इस तरह ट्रंप खुद शाह लतीफ़ पर आशिक हुआ और पहली किताबी सूरत में पहली बार जो कंपाइल किया गया वो जर्मनी से हुआ। अच्छा, जर्मनी में सिंधी प्रिंट नहीं था, उसने वो सारा अरेंज किया, वो कीज़ सारी उसने बनवाई उस ज़माने की, और उन कीज़ के ज़रिए शाह लतीफ़ को कंपाइल उसने करवाया, और इसको ट्रंप जो रिसालो कहा जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जर्मनी में ख़ास तौर जर्मन ज़बान में उसके बाद भी शाह साईं तर्जुमा हुए हैं। ये हालिया दिनों की बात है, इसी कुछ बरसों पहले की बात है। डॉक्टर शिमिल ने बड़ा दिलचस्प तकाबली जायज़ा लिया है पेन एंड ग्रेस के उन्वान से। अच्छा, पेन मीर दर्द उन्होंने कहा है, मीर दर्द की शायरी है, ग्रेस शाह लतीफ़ की शायरी है, और इन दोनों का डॉक्टर शिमिल ने तकाबली जायज़ा किया है। तो ये बहुत से तराजुम हैं। आगा सलीम का तर्जुमा है इस मौजूदा दौर में, आपके सामने जो चीज़ आपको फ़ौरन आपके हाथों में आ जाएगी। आगा सलीम का तर्जुमा है, शेख अयास का तर्जुमा है, जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसमें भी एक बात मैं आपको बताती चलूँ
कि बहुत से लोगों को शेख अयाज का तर्जुमा पसंद है, बहुत से लोगों को आगा सलीम का तर्जुमा पसंद है। अब शाहसाई की ज़बान को उन्होंने बोली जो इस्तेमाल की है वो सिंधी क्या, वो बुनियादी वो रंग है जो जाकर मैच करता है हिंदी से। आगा सलीम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह तर्जुमा किया है, उन्होंने हिंदी का रंग उसमें डाला है। हिंदी के अल्फाज जो हैं जिनमें जो उनसे मैच कर गए हैं। इसी तरह शेख अयाज ने जो तर्जुमा किया है, शेख अयाज फ़ारसी शायरी से ज़्यादा उसके करीब ले गए हैं और फ़ारसी अल्फाज और फ़ारसी तशबीहात को उन्होंने उसी में वो ले आए हैं। सो ये मामला है। शुक्रिया नूरुल्लाह शाह साहबा। मैं मुमताज़ आपसे पूछूंगा कि हम जानते हैं कि शाह लतीफ़ की जो शायरी है उसका एक कमाल उनकी ज़बान पे गिरफ्त भी है, और जो सिंध के सारे ख़ित्ते हैं, कच्चो, काचो, कोहिस्तान, लाड़, थर, उन सब के लहजों में भी उन्होंने शायरी की है। तो एक तो उनकी शायरी को क्या ये इंसाफ हो सकेगा कि उनकी शायरी दूसरी ज़बान में मुंतकिल हो, और दूसरा हमने जैसे नूरुल्लाह शाह ने ज़िक्र किया तो हमने देखा कि एच.टी. सोरले जो इंग्लिश स्पीकिंग थे, उन्होंने ना सिर्फ शाह लतीफ़ को समझने के लिए सिंधी ज़बान सीखी, बल्कि 1938 में शाह ऑफ भिट एक किताब लिखी जिस पे 1938 में उनको पीएचडी भी मिली। वो मास्टरपीस है शाह लतीफ़ पे। इसी तरह हमने देखा कि अहमद सलीम ने उनको पंजाबी में तर्जुमा किया, फहमीदा रियाज ने उनको उर्दू में तर्जुमा किया। तो क्या जो हमारे उर्दू लिखने वाले हैं या इंग्लिश लिखने वाले हैं, उनको एक तो ट्रांसलेशंस के ज़रिए मुंतकिल होता है अदब, तो क्या उनको बराह रास्त भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सिंधी की तरफ आएं, उनको शाह लतीफ़ को समझने के लिए? बात यह है कि शाह लतीफ़ को समझने के लिए वो दिल भी चाहिए, और फिर जब दिल की ज़बान खुल जाती है तो कोई भी ज़बान समझ में आ जाती है बात। शाह लतीफ़ की रिलेवेंस इस तरह है, आपने जिस तरह एच.टी. सोरले का, आदि ने ट्रंप का नाम लिया, तो शाह लतीफ़ की रिलेवेंस ये है कि जब शाह लतीफ़ परसराम ने एक जो उस वक्त मूवमेंट चल रही थी, आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, उसने एक सिंधी में एडिटोरियल लिखा। उसने एडिटोरियल में शाह लतीफ़ का एक बैत कोट किया। तो जो जज थे तो उन्होंने जब केस सुना, परसराम भी मौजूद थे, उसने कहा कि इस शायर को भी गिरफ्तार किया जाए और इस पर एफआईआर काटी जाए। कौन है? तो शाह लतीफ़ पे एफआईआर काटी गई। तो मैं ये इसीलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि रिलेवेंस की बात कर रहा हूं कि उसको उस वक्त भी वो शायरी जो पार्टीशन के बिल्कुल करीब का दौर है, इतने मॉडर्न दौर में भी उसको लगी कि ये आज का कोई बागी शायर है, आज का कोई दिल वाला शायर है जो लोगों के दिलों में तलातम पैदा करने वाला है। तो उसने उस पर फिर परसराम को तो सज़ा हुई थी, वो 3 साल लाहौर में जेल काटता रहा, लेकिन बाद में जब उसको पता चला तो फिर हमें एच.टी. सोरले की सूरत में वो शाह लतीफ़ पर किताब मिली, जिसमें एच.टी. सोरले की उस किताब के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उसने उसकी लाइफ पर किया है, दूसरे हिस्से में उसकी शायरी की अहमियत पर लिखा है, और तीसरे हिस्से में उसके जो पोखरदास की उस वक्त एक इंतखाब था शाह लतीफ़ का शायरी का, वो उसने उसमें तर्जमा करके दिया है। फिर आगे चल के उसने एक किताब लिखी जो 50s में छपी कि दुनिया के अजीम शायर मूसा प्रोग्रावेंसिस के नाम से। तो उसमें शाह भिट का एक चैप्टर था। तो उसने उस वक्त दुनिया के यूरोप के हों और इस सब कॉन्टिनेंट सिर्फ अल्लामा इकबाल को लिया। तो जब उसने नतीजा निकाला तो उसने कहा कि इन सारे शायरों, जिसमें शैले भी है, दूसरे भी शायर हैं, कि दुनिया का सबसे अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि शाह लतीफ़ के तराजिम हमें बेतहाशा मिलने शुरू हुए, उर्दू में भी शुरू हुई। जैसे पहले उर्दू में आगा ताज मोहम्मद ने नसरी अंदाज में उसके कुछ तराजिम किए, अयास कादरी साहब ने किए, अंग्रेज़ी में हुए, जर्मन में हुए, फ्रेंच में हुए। लेकिन शाह लतीफ़ को उसी तरह से वो पजीराई नहीं मिल रही थी
जो उमर ख़याम को मिल रही थी। वो अभी जब उसने क्रिस्टोफर शेकल ने अभी तर्जुमा किया है शाह लतीफ़ का पूरा रिसाला, वो इसीलिए तर्जुमा अच्छा हो सका है कि वो खुद सराइकी भी जानते थे, पंजाबी भी जानते थे और सिंधी भी उसने सीखी। तो वो शाह लतीफ़ का रिसाला जो अभी रिसेंटली छाया हुआ है क्रिस्टोफर शेकल का, उसके बाद मैंने काफ़ी वो उस पर रिव्यूज़ पढ़े हैं कि वो कह रहे हैं कि उमर ख़याम से भी बड़ा ख्याल शाह अब्दुल लतीफ़ का है। तो अब जब इस तरह ये शाह लतीफ़ को पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तो मेरे ख्याल में हम शाह लतीफ़ को सही तौर पे समझ पाएंगे कि वो दुनिया में उसका मकाम क्या बनता है। और इसी तरह हम इस खिते में हिंदी में भी शाह लतीफ़ की शायरी हुई है, तराजिम हुए हैं और दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट की ज़बानें हैं उसमें भी उसके तर्जुमे हो रहे हैं। तो यूँ हम शाह लतीफ़ को अपने इस जो दौर है उसमें भी शामिल कर रहे हैं। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी शाह लतीफ़ की नरेशन आ रही है कि वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वो औरताज़ाद मुहिम का बड़े से बड़ा शायर है कि खुद वो जो उस वक्त अंग्रेज़ स्कॉलर थे वो परेशान थे कि शाह लतीफ़ औरत बन के एज अ फेमिनिस्ट जो है उनको कैरेक्टर सामने लाया था। ये बिल्कुल नई चीज़ थी और उसके अलावा उसमें मेटामॉर्फोसिस जो था वो किसी और शायर में मौजूद नहीं था। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और हम क्योंकि मौजू में शेख अयाज भी हैं तो हमें शेख अयाज का भी जिक्र करना है। तो एक किताब छपी थी, शेख अयाज को भी फहमीदा रियाज ने तर्जुमा किया है, अहमद सलीम ने, बहुत से शायरों ने उनको तर्जुमा किया है, आसिफ फ़ारूकी और शाह मोहम्मद ने भी उनका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया है और उर्दू में भी किया है। द स्टॉर्म्स कॉल फॉर प्रेयर अंग्रेज़ी में किताब है और दानिश अयाज, फ़िक्र अयाज, ज़िक्र अयाज उनके तराजुम में उनके अयाज के कुछ कोटेशंस उन्होंने तर्जुमा किए थे जो मैं मुख्तसरन पढ़ के बताऊं। बरबत उठाओ और ख़याम की रुबाई पढ़ो, भला चंगेज़ और हलाकू खां का दौर और किस तरह गुजारना चाहिए। जिसको नज़रिया दोस्ती से ज़्यादा प्यारा हो वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। पास्तरनाक मर गया, ज़िवागो जिंदा है। सोहनी ने घड़े से पूछा, क्या तुम मेरी तकदीर की तरह टूटे हुए हो। किनारे आते हैं और जाते हैं, नदी बहती रहती है। परवाने तो ख़त्म नहीं होंगे, अब ये शम्मा ही बुझा दो। इश्क भी कुछ नहीं है, हुस्न भी कुछ नहीं है, फ़कत तड़प ही सब कुछ है। खुशबू फूल की शायरी है। तो ये शेख अयाज के कुछ मिसाल। तो अत्या मैं आपसे पूछूंगा इसकी जो उन्होंने कहा था बेटाई के फेमिनिस्ट शायरी पर, तो उस पर हाँ उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहला सवाल आपसे शेख अयाज के हवाले से करता हूँ कि आप शेख अयाज से मिली भी हैं, उन्होंने प्रीफेस भी लिखा आपका। शेख अयाज को हमने बराह रास्त, हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने उनको देखा, उनसे मिले। शेख अयाज का जो सिंधी अदब पर उन्होंने कौन से ट्रेंड्स मुतारफ़ करवाए और उनके जो तराजुम हुए हैं उनको आप कैसे देखती हैं, वो ज़रा बताएं। अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटाई की बात कर लूँ पहले। तो जैसे अभी मुमताज़ ने भी बात की, तो एक तो जो उन्होंने औरत के हवाले से बात हुई थी कि उन्होंने ली है, वो उससे बड़े मतलब उनके जो बड़े शायर थे वो फ़ारसी के जो शायर थे, फ़ारसी में मोनिस मुज़क्कर नहीं होता, तो इसलिए सिंधी में था, तो इसलिए जब सिंधी में लिया तो उसको नोट किया गया कि ये औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है। और दूसरी बात ये थी कि जो उनकी सूरमियों के हवाले से जो बात थी, जो भेटाई ने की एक प्रोग्रेसिव सोच के हवाले से, अब उसमें हीर रांझा भी है जो जिसकी कहानी सोनी मैनीवाल से एक तरह से तो मिलती है कि उनकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई और फिर उन्होंने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया और उनका इश्क पहले था, शादी बाद में करवाई गई। तो सोनी जो है उसके लिए भेटाई कहते हैं कि जो उसके शोहर का नाम था डम, तो वो जो है मुझे दिन में 10-10 दफ़ा ताने देता है ये कि तुम जो है ना किसी और से इश्क करती हो। लेकिन मैं क्या करूँ माँ कि मेरा इश्क अकल वो सब, मेरा जो अकल है और मेरी जो सोच है उस पर इश्क गालिब आ गया है।
तो वो इश्क को बहुत ज़्यादा एक औरत की सेलिब्रेशन समझता है और औरत का हक समझता है। और उसके अलावा सोनी के हवाले से कहा जाता है कि उसको मतलब भेटाई ट्रिब्यूट पेश करते हुए कहता है कि हालांकि वो एक मैरिड औरत है, उसको कहता है कि तुम महनीवाल के बगैर नापाक हो, मतलब तुम जो अपने महबूब से अगर जब तक नहीं मिलोगी उसे, तो उस वक्त तक तो तुम नापाक हो। तो नापाक इसको नहीं कहता कि शोहर को छोड़कर तुम लवर से मिलने जा रही हो। तो एक तरह से ये चीज़ें थी जो अभी तक सोसाइटी उसको हजम नहीं कर पा रही, और उस चीज़ को ढांपने के लिए जो हम लोगों को निसाब में बचपन में पढ़ाया जाता था, तो उस पर बड़े पर्दे रखे गए कि नहीं ये असल में भेटाई अल्लाह को हकीकी और मजाजी शायरी। हाँ, उसमें फंसाया गया। लेकिन अच्छा दूसरी बात है, जो औरतों के हवाले से और कैरेक्टर थे कापायती, जिसमें वो जो कपास चुनने वाली और जो कपड़े बनाने वाली औरतें थी, चरखा चलाने वाली, उस औरत का जिक्र है, नूरी का जिक्र हो चुका है। और इसके अलावा सारी जो मेहनत करने वाली औरतें, और उसके अलावा जो उनका एक मतलब जो एक मूमल, और एक इसके अलावा लीला चनेसर के वाली खातून जो है वो अपने उसको मतलब उसकी लव मैरिज हुई है, बादशाह है उसका शौहर, लेकिन वो एक हीरों के हार के लिए लालच में आ जाती है थोड़ी देर के लिए, और उसको एक और शहजादी आती है और उससे कहती है कि ठीक है तो मेरा शौहर ले लो, एक रात के लिए मुझे ये हार दे दो। अच्छा, तो थोड़ा वक्त मैं मुख्तसर करती हूँ, लेकिन उसमें ये था कि वो एक औरत के पास जो है ना वो गिल्ट है, औरत गलती कर सकती है, मतलब औरत के पास ये गुंजाइश है अगर उसने इस तरह से बेवफाई की है। वही मूमल के हवाले से भी है। चलिए ठीक है, मैं शेख अयाज के हवाले जी, से अयाज के हवाले से ये है कि अयाज के पास एक जब अयाज आया और उसके पास बहुत ज़्यादा मुताला था, बहुत ज़्यादा स्टडी, एक पढ़ा लिखा इंसान था पूरे शऊर के साथ, और उसने जब ये और उसके साथ एक इतना बड़ा पहाड़ था भेटाई का, उसके बीच में से वो इतने बड़े मकाम पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने उस सारी तमाम भेटाई की जो शायरी है, भेटाई के जो मौज़ूआत हैं वही मौज़ूआत लेकर आया, लेकिन उसमें इनफरादियत इतनी थी कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। भेटाई ने भी अयाज ने भी सस्सी और राणू इन लोगों पर लिखा, लेकिन उसको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से और एक और आम फहम ज़बान के हवाले से। और इसके अलावा भेटाई अयाज ने बहुत खुलकर लिखा सिंध के मसाइल के लिए, क्योंकि जो भेटाई के ज़माने में जो उसके मसाइल थे, फिर जो अयाज के मसाइल थे, अयाज ने क्या देखा, अयाज ने 1 यूनिट देखा, अयाज ने जो है ना वो पार्टीशन देखा, उसने जो है वो 70 वाले जो हंगामे हैं वो देखे, उन्होंने ये देखा जो सिंधियों के हवाले से सियासी सूरत हाल थी। तो ये सारा अक्स फिर अयाज की शायरी में बहुत ज़्यादा उभरता है और बहुत खुलकर आता है। उनके तराजुम के हवाले से आप क्या कहेंगे? अयाज के तराजुम में जो है उन्होंने जो अयाज का तर्जुमा अहमद सलीम ने किया, फहमीदा ने किया, और इसके अलावा मुख्तलिफ ज़बानों में उनके बहुत ज़्यादा तर्जुमे हुए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो तर्जमे या जो ट्रांसलेटर भेटाई को मिले उतने अयाज को नहीं मिल सके। हालांकि अयाज खुद भी इतने बड़े पैमाने का पढ़ा लिखा बंदा था, वो खुद भी अपने आप को अंग्रेज़ी में तर्जमा कर सकता था, लेकिन अयाज को वो ट्रांसलेटर अभी तक नहीं मिला, अयाज अभी दरियाफ्त नहीं हुआ उस हवाले से उतने। अच्छा, नूरुल हुदा शाह साहबा, मैं आपसे भी पूछूंगा शेख अयाज के बारे में कि शेख अयाज की वैसे तो उन्होंने सारे मौज़ूआत पे शायरी की है, रोमांस भी मिलता है, फितरत निगारी भी मिलती है, हर मौजू पे उन्होंने लिखा है, 50 से ज़्यादा तो उनकी किताबें हैं। और शेख अयाज सिंध के साथ उर्दू के भी बड़े शायर थे, उनके 2 मजमुए भी थे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो शेख अयाज की मज़ामती शायरी थी उसमें आप उनकी पोइटिक ब्यूटी को और उस दौर पे जो अयाज का असर था 1 यूनिट और इस पे, उसको आप कैसा समझती हैं, और क्या वो शायरी उर्दू में भी मुंतकिल हुई है? देखिए, अभी जो बात की अतिया ने, मैं शेख अयाज और शाह लतीफ़ दोनों के बारे में एक बात एक साथ कहती चलूँ कि इन्होंने कहा कि उन्होंने 1 यूनिट देखा। शेख अयाज
उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं और उन्होंने उर्दू में बड़ी खूबसूरत शायरी की है और उनकी उर्दू कमाल की है। आप जब पढ़ेंगे अगर उर्दू शायरी शेख अयाज की बराह रास्त, तो आपको वो किसी तौर एक आला पाए के शायर से कम नज़र नहीं आएगी। लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल रही, जिसमें वन यूनिट था क्या, यहाँ बहुत से नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, वन यूनिट था क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान कसीरुल अक़वाम मुल्क है, इसमें हज़ार हा बरस से कई कौमें रहती आई हैं और रह रही हैं, और ये ज़मीन जो है जो जिस पर हमने अपना ये पाकिस्तान नाम का घर तामीर किया है, अब जैसा भी है मगर है तो हमारा घर। सो इस ज़मीन की अपनी तहज़ीब है, तारीख़ है, ज़बानें हैं, ये अक़वाम हज़ारा बरस से अपनी शनाख्त के साथ ज़िंदा हैं, जिसमें एक सिंध भी है। वन यूनिट के दौर में इन सब की शनाख्त ख़त्म कर दी गई कि अब कुछ भी नहीं हैं, न कोई सिंधी है, न बलोच है, न बलूचिस्तान है, न सिंध है, न सरहद है, न कोई भी सूबा पंजाब, कुछ भी नहीं सिर्फ। लेकिन बिलखुसूस न बंगाल, मशरक़ी पाकिस्तान, बिलखुसूस जो काम किया गया वो ये था कि आपके घर के पते पर लिफाफे पर सिंध नहीं लिख सकते थे। घर का पता कराची सिंध ये नहीं हो सकता था। एक ऐसा दौर अचानक आ गया जिसमें तमाम अक़वाम की शनाख्त एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गई और ज़बानों को इलाक़ाई ज़बानें कहा जाने लगा, उनकी कौमी हैसियत को कुचल दिया गया। इस सूरत हाल में मैंने अभी कहा शेख अयाज उर्दू के बहुत अच्छे शायर, उन्होंने शुरू भी वहीं से किया है, उर्दू शायरी से, और कमाल की शायरी है वो भी। लेकिन रसूल बख्श पलीजो साहब एक हमारे दानिश्वर, सियासतदान, खुद अदीब, कमाल के अदीब, कमाल के, ये हमारी बदकिस्मती है कि आज वो नहीं हैं, अगर वो हों तो आप उनकी गुफ्तगू के सहर में मुब्तला हो जाएं। सो रसूल बख्श पलीजो साहब हमेशा एक बात कहा करते थे कि जब वन यूनिट हुआ और उससे पहले ही जब हक तलफियों का मामला शुरू हुआ इस मुल्क में, जो कुछ हुआ अब आपके सामने है, तो कहते थे हमने रसूल बख्श पलीजो और जोयो साहब सिंध के, इब्राहिम जोयो एक बड़े दानिश्वर सिंध के गुजरे हैं और हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। ये दोनों कहा करते थे कि हमने अयाज को कहा कि अयाज उठ अपनी कौम को जगा और अपनी कौम की शनाख्त की बात कर, और अयाज ने फौरन वो काम संभाल लिया। मगर शायर वो कमाल का है, उसने मज़ाहमती उन्होंने जो शायरी की, एक सबसे बड़ी चीज़ ये की कि शेख अयाज अभी शाह लतीफ़ पर ज़ाहिर मुख्तसर गुफ्तगू में जितना भी हम आपके साथ शेयर कर सकें, लेकिन शाह लतीफ़ का जो लेवल है और शेख उन्होंने बड़ा असर छोड़ा है न, हर तरह से सिंध पर, सिंध के शऊर पर शाह लतीफ़ का जो गहरा असर है, शेख अयाज उससे भी मुतासर थे, बहुत मुतासर थे। मतलब आप यूँ समझ लें कि शाह लतीफ़ को वो अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन किसी शायर के बड़े शायर होने की निशानी ये है कि वो उस असर से ख़ुद को बचा कर लिखे और बचा कर शायरी करे। और जब आप शेख अयाज की शायरी पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी नहीं लगता कि शेख अयाज शाह लतीफ़ से इतना मुतासिर है, जबकि वो ये शेख अयाज का कमाल है। सो शेख अयाज ने उस दौर में जो शायरी फिर शुरू की, जो शायरी शेख अयाज के सामने आई, उसके साथ साथ मैं आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बताती चलूँ। वापस शेख अयाज पर आने से पहले कि जब ये सारा वन यूनिट और ये सारा कुछ हुआ, मज़ाहमत बंद हो गई, एहतजाज बंद हो गया, आप अपनी शनाख्त के साथ बात नहीं कर पाते थे, तो सवाल उठा कि अब हम क्या करें। अब देखें कौमें कैसे बनती हैं, शऊर को कैसे जगाया जाता है। तय किया गया कि हर साल भिट शाह पर
जहाँ शाह लतीफ़ दफन है, वहाँ शाह लतीफ़ का हर साल उर्स होता था। उस उर्स को मनाया जाने लगा और शाह लतीफ़ की वो तमाम शायरी जो वतन, हम वतनों के लिए, वतन के लिए, धरती के लिए, धरती के लोगों के लिए वो सारी थी, वो गाई जाने लगी। अब हुआ तो ये था पाकिस्तान बनने के बाद कि तमाम सूफ़ी शोरा को महकमा औकाफ की तरफ से उनके ऊपर हरी चादरें डालकर कहा गया कि ये सब वली हैं और आपका काम इनसे सिर्फ दुआ मांगना है, और उन्होंने कोई ख़ास कारनामा नहीं किया हुआ, क्योंकि इन सब ने मज़ाहमत की हुई। इस रीजन के तमाम सूफ़ी शायरों ने अपने अपने रंग में मज़ाहमत की हुई है। सो जब वहाँ शाह लतीफ़ को गाया जाने लगा, जब मारुई गाई जाने लगी, जब महलों को मारुई ललकारने लगी, जब बादशाह वक्त को मारुई ललकारने लगी, और फिर उसमें शेख हयास की शायरी सामने आई। और उस शायरी का हुस्न ये है, एक नज़्म है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शेख हयास की शायरी का हुस्न ये है कि वो कोई गोलियों और बारूद और इसकी बात नहीं करते, वो बड़े जमालियात उनकी जो मज़ाहमती शायरी में है वो कमाल की है। मैं एक नज़्म इनकी आपके साथ शेयर करती चलूँ, तर्जुमा है और मोहसिन भोपाली ने इसको तर्जुमा किया है। इसमें आप शेख हयास की जमालियात देखें, मज़ाहमत का हुस्न देखें और देखें कि वो क्यों इस धरती पर अपने पूरे कद के साथ क्यों खड़े हैं। कहते हैं, मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ, हाँ मैंने जुर्म किए हैं बहुत, मैं मुजरिम हूँ। अब जमालियात देखिए, तालाब के गदले काई जमे पानी में, खिलता नील कमल भी तो मुजरिम है। जमालियात देखिए मज़ाहमत में, और कोई चकोर जो अंधियारे में उड़ता है वो भी मुजरिम है। ये जुर्म नहीं, मैंने फिर से आदम की मिट्टी गूंदी है, मैं मुजरिम हूँ, हाँ मैं मुजरिम हूँ। ये वो जमालियात है जो शेख हयास की शायरी में है। यही इससे बड़े पैमाने पर वो जमालियात है जो शाह लतीफ़ की शायरी में है। और मुझे बताइए कि इश्क़ हकीकी के हसीन रैपिंग पेपर में लपेटकर धरती और धरती के लोगों की बात की जाए तो कौन माई का लाल है जो उसे चैलेंज कर सके। हमारा वक्त मुख्तसर है। ऑडियंस से हम गुजारिश करेंगे कि हम 3 सवाल पहले ले लेते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि सवाल हो, कमेंट और तबसरा ना हो, और 3 सवाल ऑडियंस से हम लेना चाहेंगे। माखाम साहब जी, माइक पे। मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से ये करूँगा कि आपने ये कहा कि पंजाबी या सिंधी और ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ, तो वो शाह लतीफ़ को पश्तो में भी जो है वो तर्जुमा किया गया। इंतखाब की सूरत में पश्तो अकेडमी से वो किताब छपी, हसन आगा ने किया है उसका तर्जुमा। और मैंने मैडम से भी, आदि से भी बात की थी कि उस पे जो शेख हयास का तर्जुमा है उस पे मैंने एक वर्क भी शुरू किया। उसको मैं टोटल जो बुक है वो उसमें पश्तो में उसमें लाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। कोई और अगर सवाल हो? डॉक्टर लियाकत अली, प्रोफेशन के हिसाब से मेडिकल डॉक्टर हूँ। सवाल मेरा ये है, तर्जुमे बहुत अच्छी बात है, दूसरे लैंग्वेज वालों को हमारे क्लासिक शौरा का पता चलता है, लेकिन आजकल की सिंधी नौजवान नस्ल क्या बिटाई को पढ़ सकती है? ये बड़ा सवाल है, और ऊपर बैठने वालों से नहीं, नीचे वालों से भी। सही। दुनिया में जो लैंग्वेजेस हैं
कुछ करीबल मर गए, कुछ मरने वाली हैं, कुछ आगे चल के वो कहते हैं कि मरेंगी। ठीक है जी, सवाल हो गया आपका। और कोई अगर हो? आप इसका जवाब दीजिएगा कि इस पे क्या सोचते हैं। जवाब ले रहे हैं आप। ममताज, आप मुख्तसर। अच्छा, एक सवाल दुनिया में जो ज़बानें मरती हैं वो इस वजह से नहीं मरती हैं कि उनकी शायरी मुश्किल होती है, वो मरती इसलिए हैं कि उनको बोलने वाले नहीं रहते। तो हम उसके बोलने वाले मौजूद हैं। और सिंप्लीफाई, अब हम यूरोप की शायरी देखते हैं कि वो भी बहुत मुश्किल है। शेक्सपियर को सिंप्लीफाई करके पेश किया जाता है, जॉन डन को पेश किया जाता है, शेले को पेश किया जाता है, तो लोग उनको सिंप्लीफाई करके पेश करते हैं या एलोबरेट करके पेश करते हैं। तो हमारे यहाँ शाह लतीफ़ खुद इतने खुद शनास हैं कि वो सबके दिलों में बस गए। और कोई भी आगे वाले वक्त में शाह लतीफ़ को इसीलिए भूल नहीं सकेगा कि वो जो शेख अयाज ने कहा है ना, वो मिट्टी इसी से गुंदे हुए हैं, तो वो सिंप्लीफाई होते हुए वो लोगों तक रहेंगे। शेख अयाज की एक थोड़ी सी उर्दू तर्जमे के हवाले से बात कर दूँ, डायरेक्ट उर्दू में शायरी देख लें आप, कि उसने कहा मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, थाम लो एकदम मसाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौनो, डूबी जाएंगे डूबी जाएंगे। तो ये हमारी इस तरह की जब शायरी, शाह लतीफ़ की इस तरह की शायरी इस अंदाज में आएगी तो मेरे ख्याल में कोई नहीं भूल सकेगा। आपने हाफिज़ कुरान लातादाद देखे हैं, आपको पता है होते हैं। और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि सिंध में कई जिन्हें शाह लतीफ़ का हाफिज़ कहा जाता है गुज़रे हैं और आज भी हैं, जो शाह लतीफ़ के पूरा रिसाला जिनको हिफ्ज़ है, और जो शाह लतीफ़ के शाह जो रिसालो कंपाइल करने में आज भी मदद देते हैं। सो ऐसी बात आप और अभी भी आज का भिड़शाह पर चले जाएं, वहाँ पर जो भेटाई का राग होता है उसमें बहुत ज़्यादा नौजवान हमारे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे वो बहुत एहतराम के साथ सुन रहे होते हैं। जी। और जी, अस्सलाम वालेकुम। एक मैं कमेंट बता दूं कि अनवर पीरजादो कहते थे कि शाह लतीफ़ वो वाहिद शायर हैं जिनकी शायरी सिंध के देहातों में सिंध के आम आदमी को अभी तक याद है, और वो ज़बान जो है वो रूरल विलेजेस में अब तक भी बोली जाती है। बिल्कुल, मैं उस जैकबाबाद गदाई शहर से वाबस्ता हूँ, और मेरी खुशकिस्मत यह है कि मैं नूरुल्लाह शाह साहिबा के दौर में रहता हूँ और उनको सामने सुनता हूँ। मेहरबानी। शेख अयाज की तरह मज़ाहमती शायर अब्दुल करीम गदाई भी रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि नौजवान साथियों सिंध जा वारसो साथ हलंदो रहे, लाट बरंदी रहे। सवाल इहो हुयो त जीअं तर्जुमन जे हवाले सां थियो त इहो हिकिड़ो बहितर थिया त गुरबख्शानी साहब जे निकोलसन जी उनमें अंडर जेको आहे त PhD कई हुई, जंहिं एन मैरी शेमिल जो बि उस्ताद हुयो ऐं उहो ओरिएंटलिस्ट हुयो, ऐं उन जे हवाले सां जेको आहे गुरबख्शानी साहब जे शाह लतीफ़ साहब खे पेश कयो आहे हिकिड़े फ़िलासफ़र तौर ते, हिकिड़े मुर्शिद जे तौर ते न, हिकिड़े वली जे तौर ते न, इन ते थोरो नज़र थिए। महिरबानी। बस इस आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर गुरबख्शानी गुजरे हैं जिन्होंने कंपाइल किया है शाह जो रिसालो। मैं इस हवाले से डॉक्टर वो तो आपका कोई सवाल है नहीं एक्चुअली, ये तो गुरबख्शानी साहब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका जिक्र हुआ है मैं आपको मज़ीद इतना बता दूं शाह साईं के हवाले से, जो उन्होंने ज़मीन में बोया है। ख़ास तौर पर आज के दिन जो चीज़ आप देखेंगे कि शाह साईं को हिंदुओं ने कंपाइल किया है, डॉक्टर गुरबख्शानी और कल्याण आडवाणी, और लेकिन ख़ास चीज़ देखिए इन्होंने जो कंपाइल किया है, इन्होंने शाह जो रिसालो अव्वल अला अलीम के साथ शुरू किया है। शाह साईं का पहला बैत है, अव्वल अला अलीम आला आलम का धनी। जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है, इन्होंने उसकी तशरीह वहीं उसी तरह से की है। इसी तरह आप फिर शाह साईं को देख लें, शाह साईं के किरदार, बहुत से किरदार हिंदू हैं। शाह साईं ने उनकी पूजा का जिक्र किया है और इश्क में लफ्ज़ पूजा इस्तेमाल किया है। सो ये वो चीज़ है
कि जो शाह इस ज़मीन में बो गए हैं कि हम और हिंदू एक ही थाली में बैठकर खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं।
बेशक आप देखिए, तालियां बजाइए, घर जाइए, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि अरे भाई इस खेल में तो ये पूछा गया है, क्या ऐसा है, क्या हम ऐसे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जो लोग जैसे नज़र आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसे। फिर अपनी राय कायम करें। तो शायद ये खेल भी कुछ इसी बारे में है। इसे लिखा मैंने है और हिदायत भी मैंने दी हैं। 2-3 मरतबा ये पहले खेला जा चुका है डिफरेंट कास्ट के साथ और बहुत मकबूल हुआ। मैं इस खेल को कराची को डेडिकेट करती हूँ। इसके अंग अंग से कराची झलक रहा होगा, छलक रहा होगा। और अगर आप कराची के नहीं भी हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क से आएँ या लंदन से, तब भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो देखते हैं खेल। लाइट्स ज़रा, ये वाली लाइट्स ऑन रहेंगी? ओह माय गॉड। चलिए, आप सोच लीजिए कि आप एक अंधेरे ऑडिटोरियम में हैं और लाइट्स सिर्फ यहाँ हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन सोचने में क्या है। तो मज़े लीजिए खेल के। लेडीज टेलर। बिस्मिल्लाह। हुर शुमाइल। ला 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 कुव्वत। फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सलामुअलैकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम था तुम ही होगे। और कौन आवेगा इतनी सुबह? कसम अल्लाह की उस्ताद, तुम तो जवानी की नींद सोने भी नहीं देते चैन से, और तुम पर तो लगता है जवानी कभी आई ही नहीं। चाबी। आओ नाश्ता कर लो, एक पराठा तुम्हारे लिए भी बनाया है। ना भाई, मुझे भूख नहीं। इतनी सुबह सुबह तो मैं खा ही नहीं सकता। कसम अल्लाह की उस्ताद, मोहल्ले की सारी दुकानें 12 बजे खुलती हैं, सिवाय एक नागौरी मिल के और शौकत लेडीज टेलर के। शौकत लेडीज टेलर नहीं, शौकत स्कूल कहिए। स्कूल से भागा तो यहाँ आकर फंसा। एक ये शटर, एक तो इसमें इतना जंग है, आयल लगा लो। नींद साली आए जा रही है। ना कर तो आए हो ना। हाँ, लो सूंघ लो। लाल साबुन से कितनी दफा अम्मा को बोला है जरा डब साबुन ला दो, मान के नहीं देती। अच्छा चलो मैं ला दूंगा अच्छा वाला साबुन। हाँ, आज सफाई जरा ठीक से करना, कतरने बहुत जमा हो गई हैं, उनको जरा अलग ड्रम में डालना। मैं हांडी चढ़ाकर आया अभी। उस्ताद, क्या पका रहे हो आज? गोश्त ना? लौकी। सिर्फ लौकी? थोड़ा सा गोश्त उसमें छिड़क दो, क्या जाता है तुम्हारा। अच्छा हड्डी वाला गोश्त डाल लो, बच्चिया का, कसम अल्लाह की लेफ बन जाएगी। अच्छा चलो लौकी गोश्त बना लेता हूँ, आज देर तक काम करना है। ये उस्ताद, काम से मैं नहीं घबराता, बस खाना टेट मिल जाए तो क्या बात है। अनारकली डिस्को चली,
कुंडी न खड़का सोने सीता अंदर आ। कुंडी ना खिड़का सोनिया सीधा अंदर आ, हरी जवानी गल लेके सारी हरी जला, लगना प्यारा तू दिलदारा दिल भी प्यासे बुझा, गड़वी खिच पीले गड़वी, गड़वी दुजवाली एक गोली खिच पीले। अबे हीरो, इतनी प्यारी सुबह और ऐसा वाहियात गाना बंद करो। अरे मैंने कहा बंद करो और जरा मेरा कैसेट रिवाइंड करो। ये अगरबत्ती लगा लूं तो शुरू कर देना। अल्लाह उस्ताद, उधर इज्तिमा में मौलाना कह रहे थे कि ये हिंदुओं की है। तौबा तौबा तौबा। क्या? अच्छा, ये अगरबत्ती हिंदू है और मोमबत्ती मुसलमान। मेरा मतलब हिंदुओं की रस्म है। तो क्या बुरी है? तुम्हारे नाच गाने बेहुदा अशार वाले छिचोरे गाने से तो बेहतर है तुम इससे अपनी सुबह का आगाज करो और हम अल्लाह अल्लाह करके इस अगरबत्ती से कम से कम खुशबू तो देती है। ये गले की पट्टी खींच कर तुरपाई करो वरना झोल आ जाएगा। उस्ताद, मार्केट में सब गले दामन पर मशीन की डबल सिलाई करके फारिग करते हैं गाहक को। एक तुम ही हो बारीक टांका नफीस तुरपाई। अगर ये बाजार ने लूट खसूट मचा रखी है तो मैं भी शुरू हो जाऊं? नहीं हीरो, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं। मेरे को तो है उस्ताद। किस बात की? बड़ा आदमी बनने की। वो टीवी पर देखो ना कैसे कैसे लोगों के शो आते हैं। वो दीपक परवानी है? दीपक परवानी हिंदू है, हिंदुओं की तकलीद करोगे? वो तो मुंह से निकल गया। मौलाना जुनैद जमशेद भी है। उन सब ने वक्त लगाया है, अपने काम से अपने फन से मोहब्बत की है कि सारा मोहब्बत ही का तो है। उस्ताद, तुम और मोहब्बत लेडीज टेलर और लेडीज से दूर भागते हो। एक से एक डेढ़ लड़की यहाँ आती है, मजाल है जो एक से दूसरा जुमला बोल लो। कम से कम नाप ही ले लिया करो। क्या डिजाइन रखूं? नाप की शर्ट लाई है, 2 हफ्ते बाद कपड़े मिलेंगे। सादे के 400, डिजाइन वाले के 600। लो जी, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो और क्या, ज्यादा बात करने की क्या जरूरत? ये औरतें अपने अपने घरों की शमा हैं, उनका उजाला उनके आंगन तक ही रहना चाहिए। क्या जोक है? शम्मा, ये शम्मा आजकल सर्च लेड बन गई है। इनके ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं फोन पर, तुम पढ़ लो तो अल्लाह कसम तुम तो अच पे निकल जाओ। तुम कुछ ज्यादा नहीं बतिया रहे, चुप करके काम करो। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते। और मेरा गाना क्यों नहीं चला अभी तक? मलिका पुखराज, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। क्या कलाम है इकबाल का। ओ साथ वो कैसेट इधर उधर हो गया। और ढूंढो फोन। ये लगा दूं। फोर्ट गर्ल्स 1980 कल ही लाया था, आपकी जमाने की है। श्री देवी, माधुरी दीक्षित, तब मैंने कभी इंडियन क्या पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखी है। सच्ची? हाँ, आप जरूर ऐसा कर सकते हो। ये क्या? गुटका? अब इस पर सुबह सुबह भाषण मैं नहीं सुनूंगा। इधर ये बुढ़िया रो रही है, रात भर का जागा वाला कुछ चाय तक तो पी ली। अब तो बोलोगे गुटका ऐसा गुटका वैसा। अच्छा, अंदर चाय पराठा रखा है, जाके नाश्ता कर लो। मास्टर साहब, अल्लाह कितनी गर्मी है। तौबा तौबा। एक अर्जुन सूट सिलवाना है, सी देंगे ना? बड़ी तारीफ सुन रखी है आपकी खाला कुबरा से कि मास्टर शौकत जैसी फिटिंग तो डिफेंस की बुटीक वाले भी नहीं कर सकते। नाप ले पूरा है 5 मीटर। कमीना गज के हिसाब में नाप रहा था। मैंने कहा मीटर में देना है तो दो, वरना ये देखे पेवर सिल्क है और ये दामन पर ना जामावार लगेगी। और हाँ, दुपट्टा जरूर भी को करवा देना। और ये गले की बेल। रुक जाए मोहतरमा, कपड़ा तो नाप लूं। हाय अल्लाह, टाइम किसके पास है?
कल सुबह मुझे पहनना है, वरना अकमल ना मेरी जान निकाल देगा। उसी कम वक्त ने दिलाया ये, पूरे 3000 का है और ये गला और लेस ना अलग खरीदी है। कल सुबह कितने बजे आऊं लेने? कल? हाँ। ये गली में सीधी चली जाए, वहां टीना फैशन नाम का बुटीक है, वो सीते हैं अर्जेंट 3 गुना ज्यादा सिलाई लेकर। मैं पहले वहीं गई थी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो अकमल साहब से ले लें। हाय अल्लाह, मर नहीं जाएगा कमीना। 3000 का सूट, फिर 3000 सिलाई, फिर कल डेट पर जाएंगे तो खाना पीना फिल्म। कल डेट है मेरी। जी डेट? हाँ। क्या किसी की शादी की डेट तय हो गई है कल? मास्टर आप वाकई इतने भोले हो क्या बन रहे हो? हैं? डेट क्या होती है? जमील भाई आप जरा बताएं डेट क्या होती है? डेट क्या होती है मास्टर साहब? अच्छा मैं आपको बताती हूँ डेट क्या होती है। देखें, जब एक लड़का और लड़की आपस में चक्कर चलाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो बाहर जाकर मिलना मिलाना तो पड़ता ही है। तो बस वो लोग बाहर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, बस यही तो डेट होती है। हीरो जल्दी आओ, ये अपने कपड़े लीजिए और जहां जाना चाहिए। मुझे नहीं सीने आपके कपड़े। ला हौला वाला। क्या हुआ सच? क्या हुआ? और क्या? तुम इन्हें उस्ताद कहते हो? इनको तो ना शागिर्द बनाने का जी कर रहा है मेरा। ना इनको प्यार का पता है ना डेट का। हीरो तू एक काम कर, तू इनको लेकर जा और किसी म्यूजियम में रख दे। ये मास्टर का मस्जिद के इमाम ज्यादा लगते हैं। जरा सोचो, पूरे मोहल्ले में हूर शुमाइल को कोई मना कर सकता है भला? सलीम भाई आप ही बता दें, कर सकते हैं क्या मना मुझे? सारे मर्द बुढ़े जवान सबके सब आगे पीछे फिरते हैं मेरे। और एक ये जरा आराम से बात कर। नाप की कमीज लाई हैं आप? ये हुई ना बात, वो तो मैं नहीं लाई, लेकिन आप ना नाप अभी ले। देखिए मुझे ना बिल्कुल टाइट फिटिंग चाहिए, बिल्कुल जिप वाली। हाँ, और गला ना 8 रखिएगा। 8 शुमाइल बहुत नहीं होगा ये। तुम बहुत फ्री हो रहे हो, थोड़ा से छोटे हो मुझसे। बाजी का फौरन। तुम मालूम नहीं अकमल का जिम है, सारे मोहल्ले में ना किसी मर्द की ऐसी बॉडी नहीं है। शुमाइल गला 8 ज्यादा नहीं होगा जी? मैं नाप नहीं लेता, जोड़ा सी दूंगा रात तक। सलवार की लंबाई 40। बाजी काफी टॉल है। हाँ हाँ मंजूर। चल हीरो ला कर देती हूँ कमीज, मौलाना साहब को दे देना। उठा जाऊं? जाओ, मगर फटाफट ले आना। और हाँ, जो कमीज भिजवा रही हूँ ना वो जरा लूज है, यहाँ से तो 2 इंच ना टेट रखिएगा। हाँ हाय बहुत गर्मी है, अभी पार्लर भी जाना है, फेस पॉलिश लगेगी। पता है कल ना मेरी बर्थडे है, देखो अकमल क्या गिफ्ट लेकर आते हैं। आईफोन मांग लेती। हाय हाय मर नहीं जाएगा कमीना, आईफोन। तौबा तौबा। कितनी मिर्चें थी निहारी में भाई। कमबख्त से कहा भी था कुछ हल्का खाना ले आ, दाल वाल। अब जी मालिश कर रहा है, नींद कैसे आए। इसने तुम्हारी नींद उड़ा दी है, ये कमीज वापस कर दो, चैन की बंसी बजाओ। 10 घड़े का पानी पी जाओ, ये प्यास तब भी नहीं बुझेगी। सारा मोहल्ला मेरे पीछे राल टपकाता है, तुम क्यों नहीं? कभी नहीं, वाहियात लड़की। अयो मियाँ, अयो शौकत मियाँ, अय आप लोगों को बच्ची के वास्ते अच्छा रिश्ता होना क्या? हाँ बहुत रिश्ते हैं मेरे पास, हो ना? अयो मेरा काट देती हूँ जी मैं अभी। अय शौकत मियाँ बहुत गर्मी हो रही जी, ये बोतल पी रहे हैं लोग तो। हाँ हाँ ये देखो कैसे प्यारे प्यारे बच्चियों के फोटो लाए हूँ मैं। हाँ आज तुम एक को तो ना डन करके शो। हाँ अब मैं इनकार नहीं सुनूंगी।
अरे मार्ची मिले बैठ के यहाँ बोतल पी रहा, बड़े आए हैं, हट जगह दे मेरे को, हट। क्या देखूं फातिमा भी, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबकी एक सूरत। असली लड़की तो सीरत से बनती है। ये देखिए मियाँ, इधर रुको, तुम्हारी तो छवि च निराली है। हाँ, लोग क्या क्या नहीं मांगते जी। हाँ, लंबे बाला होना, ऐसा लंबा खद होना, बड़े बड़े आँखा होना, गोरे गोरे गाला होना, तुम्हारे को कोई दिलचस्पी च नहीं है। इस दवाजी ऐप वगैरह तो नहीं है तुम्हारे में, है? तुम पोटियों से बहुत हिचकन नहीं कतराते। आई जब मैं फोटो लाई तुम मना कर देते, ऐसा फातिमा भी का घर कैसा तो भी चलेगा। हाँ जी नहीं फातिमा भी, आप निहायत, आप ये बोतल पीजिए और चलिए। ऐसा कैसे चली जाऊंगी मैं? ये देखो, ये जकिया, ये देखो, अच्छी लग रही तुम्हारे को। हाँ, ओहो, इसको देखो। भाई लोग मालूम क्या क्या मांगते, देखो जेवर भी मांगते, नखद बंदे, जोड़े की रकम मांगते, सब दिलाती हूँ मैं तुम्हारे को। हाँ हाँ, देखो तुम्हारी अम्मा के जैसी। हाँ हाँ, कर दो एक लड़की के वास्ते। हाँ हाँ, कौन सी पसंद आ रही बताओ। आप दे जाए, मैं देख के आपको बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, मैं जब आई तुम्हारे घर पे ताला रहता, मैं सुनी तुम घर में अंदर जो है बंद कर लेके किसी से मिलते ही नहीं, ऐसा काहे को कर रहे होंगे तुम शौकत? क्या करते रहते तुम घर में? बस कुछ नहीं, ईशा तक यहाँ होता हूँ दुकान पे, फिर मस्जिद, फिर घर, फिर मस्जिद, फिर नहीं घर। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो है ना किसी को, अयो आ गई उन्हें। शौकत साहब, सूट सिल गया? हाय 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 पुट्टी, यहाँ बुरखे में खड़ी, तेरे को फातिमा भी नकल नहीं आ रहे? हाँ, मैं नहीं दिख रही हूँ? मर्दुआ तुम फौरन ताल लिए। मास्टर साहब सॉरी, सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको देखा नहीं, असल में ना धूप में मुझे काले लोग नजर नहीं आते। काले? ये मेरे को काला बोल रही है। भाई लक्स से साबुन से मैं मुंह धोती हूँ सुबह, तो मेरे को काला बोल रही? चलो मैं हूँ काली, मगर तुम्हारे जैसी आवारा बदजात नहीं हूँ। अरे मियाँ, घर घर बिल्ली के वैसा मुंह मारते फिरती है ने, सब मर्दों को जो है ना ऐसा सेट कर लेती। बच के रहना जरा इससे तुम। ये रखो तुम, देखो इसको। लाओ जी, बोतल पी लेती हूँ मैं। आपको बाद में देती हूँ मैं नंबर। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बस ऐसी मुंह फट है। इधर कौन माइंड कर रहा है बुड्ढी खूसट को? वो तो आपके ख्याल में मैंने सिर्फ काली का है, वरना छोड़ी, मेरा ना लड़ाई का मूड नहीं है। आप बताएं, मेरी कमीज सी दी आपने? सॉरी हीरो, मुझे बर्थडे विश नहीं किया तूने। वो सॉरी बाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और मेरा गिफ्ट? ये मीठे पान और बस। बस? कैसे दोस्त हो तुम? ओ, साथ ने तनख्वाह नहीं दी ना। ये रहा आपका सूट। अरे हाँ, यही तो मैं लेने आई थी। कितना प्यारा होना है। मास्टर साहब, कितने पैसे हुए? वो सिया तो अर्जेंट है, आप बस जो चाहें दे दें। अच्छा, वो 1000 का नोट पड़ा था, अभी पार्लर में देकर आई हूँ कसम से। शाम को ना अकमल से लेकर दे दूंगी। दुकान कब तक खुली रहती है? जी कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। शुक्रिया। ना आपकी कमीज इसी में है ना? हाँ वो चलिए कोई नहीं, बाद में ले जाऊंगी, अभी ना देर हो रही है। बाय बाय। जल्दी बाप रे बाप, लड़की है कि बोलने की मशीन। खटाखट जुमले पे जुमला, बात पे बात निकाली चली जाती है कैंची की तरह। फातिमा भी ने तो उसका कच्चा चिट्टा ही खोल कर रख दिया। अब आएगी तो निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगा। शरा में यही हुक्म है। खामखा मेरे करीब आकर मेरे नफ्स का इम्तिहान लेती है।
भी न जाने क्या लगा कर आती है, तबीयत मतला जाए। अब आएगी तो ये कमीज उसके मुंह पे दे मारूंगा और पूरे पैसे लूंगा अपने। अर्जेंट जोड़ा भी सिलवा लिया, नाज़ो अदा दिखा दिखा के हैदराबादी एक्सेंट बेवकूफ समझ रखा है। पता नहीं मोहल्ले में किस किस्मत से जा रही है। कहीं तो पहले खुदा आज जिक्र चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले अबे बंद करिए, सर में दर्द कर रखा है। फुजूल शायरी, न सर न पैर। मार उस्ताद, ये तो अल्लामा इकबाल है, तुम्हारे फेवरेट। फैज अहमद फैज। एक ही बात है। अब जरूरी तो नहीं हर अच्छा शायर हर कलाम अच्छा लिखे। क्या बात है उस्ताद, चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? थके थके भी लगते हो। हाँ भाई, रात भर सो नहीं सका, फजर भी कज़ा पड़ी, बस जिस्म टूटा पड़ा है। अच्छा तुम अपना काम खत्म करो, मैं जरा अस्तर का कपड़ा लेकर आता हूं। ठीक है। कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, बड़ी जवानी बदन लाके। हे हीरो, हे हीरो, पानी 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 ला। क्या हुआ सत, क्या हुआ? क्या मोबाइल छिन गया? हाँ, कुत्ते भी इसी लग गए। ओहो, तुम्हारे कन्ने तो मोबाइल है ही नहीं। अबे सब्र कर जा हीरो, जरा सांस तो लेने दे। अबे वहां गोलियां चल रही हैं उस फर्नीचर मार्केट के पास। क्या हो गया इस शहर को? आज इतने दिनों बाद अस्तर का कपड़ा लेने निकला था और जान के लाले पड़ गए। अबे तुझे डर नहीं लगता इन गोलियों से और छीना झपटी से? बिल्कुल नहीं उस्ताद, बल्कि 2-4 गोलियों की तड़तड़ या बम धमाके की खबर ना सुनो तो अल्लाह कसम जिंदगी फीकी फीकी लगती है। ओ, तुम्हारे आलू गोश्त की तरह बकवास करते हो। सच कह रही हो उस्ताद, तुम्हारे घर ना टीवी है ना रेडियो, एक अखबार आता था वो भी तुमने बंद करवा दिया कि भाई औलाद और दहशतनाक खबरें आती हैं, बंद करो ये खामखा का खर्चा। तो इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि अब तुम इस मुल्क और इस माहौल के आदी नहीं रहे हो। पाकिस्तान तो बस अब ऐसा ही है। अब ऐसा भी नहीं है। हमने आंख खोली तो कानों में अजान के बजाय गोलियों की तरतर सुनी। स्कूल गए तो तालीम से ज्यादा सियासत देखी। सर्दियों में मोटी जैकेट के बजाय खुद कुछ बम्बार की जैकेटें ज्यादा देख रखी है हम लड़कों ने। अब अपना दिल इस मोबाइल से और इसके मैसेजेस से ना बहलाए तो क्या करें? अस्तर का कपड़ा श्रिंक कर लो। अरे बाजी, और बाजी कहाँ जा रही हो? इधर तो आओ। बाजी इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? कमल भाई के पास? नहीं तो पागल, वो शबीना की माई है ना आज, तो ढोल किराए पर लेने गई थी तो कमीना ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांग रहा था, मैंने तो साफ मना कर दिया। क्यों बाजी? समझा करना, मेरी एज मालूम कर लेता सुअर। ये देख, ये ना हाट हाट गानों की सीडी लेकर आई हूँ, शाम को ना ऐसी पर डांस करूंगी। सलाम शौकत जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सिला हुआ सूट ना बहुत लश था, सारी लड़कियां बहुत तारीफ कर रही थी कि किससे फिटिंग कराई है। जी हाँ शुक्रिया।
ये आपकी नाप की कमीज। आप या अपने पास ही रखिए। असल में ना मुझे एक और कमीज की फिटिंग भी करवानी थी अपने नाप की। शाम तक कर देंगे ना शौकत जी? बारिश, हाय अब तो और मजा आएगा, है ना हीरो? इन बुड्ढे खूसट को क्या पता बारिश और बारिश की मस्ती का। मेरे तो ना तन बदन में आग सी लग जाती है बारिश के ठंडे ठंडे पानी से। हाय, वो कौन सा गाना है? टिप टिप बरसा पानी टिप टिप। बाजी मेरी भी तो दावत है मायों की। शेस्ता के साथ मैं ही तो डांस करूंगा। अरे बड़े मजे आ रहे। ओए हाँ, ये तुम्हें भूल ही गई। अयो शौकत मियाँ, बारिश हो रही जी, तुम बारिश में भी काम कर ले रहे। हाँ, बहुत ही भूख लगी मेरे को, बिजली भी चले गई जी मेरे घर की। मैं बोली जरा शौकत मियाँ के पास जाके बैठती हूँ। कैसे हैं तुम, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। ये समोसे मेरे वास्ते ही रखे जी तुम लोग। आइए, बारिश में समोसे, पुदीने की चटनी नहीं है और ये नमक पारे भी हैं। मजा आ गया भाई बारिश का तो। किसकी खमीज सी रहे माँ? ये वो है कोई खातून मोहल्ले की है। देखती हूँ जरा मैं, कौन तो भी है वो मोहल्ले की जो मेरे को नहीं मालूम। दिखाओ। अम्मा, इतनी छोटी खमीज, ये तो 5 साल के बच्चे की दिख रही मेरे को। और अस्तीना तो है ही नहीं इसके। हाँ, अस्तीना नहीं पहनते वो लोग। हाँ, तुबा तुबा तुबा। जी जी। पूरी की तो नहीं है ये। हाँ, नहीं ना? नहीं, तुम ऐसे पाक साफ आदमी कहाँ हुरी को आने देंगे अपने करीब, मालूम मेरे को। एक बात सुनो, डरो, ये मोहल्ले की औरतों की खिदमत तुम कब तक तो भी करेंगे? हाँ, घर बसा लो, जिंदगी भी संवर जाएंगी, घर अच्छा हो जाएगा, आखिरत भी संवर जाएंगी। फातिमा भी कभी मेरे घर का सर्वे कर लें, मजाल है कोई कहीं जाल मकड़ी या मिट्टी नजर आ जाए, अपने हाथों से सारे घर की सफाई करता हूँ। बीवी की क्या जरूरत है? हाँ, मगर घर तो चलो तुम साफ कर लेते। खाना कौन पकाएगा? कभी मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए फातिमा भी, मजा आ जाएगा। बीवी क्या खाली घर को झाड़ने खाने पकाने को आती? हाँ, मर्द की 100 जरूरियत, उसका क्या? अयो बारिश हो रही जी, तुम दुकान बंद कर रहे हैं क्या? अभी थोड़ा सा काम ईशा तक करना है। हाँ, अभी मेरे घर की तरफ तो बिजली भी नहीं है, ना बिजली है ना गैस है, उजाड़ का की कराची है उजाड़। तुम जो ये देखो, फिर छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारे पास। एक बात सुनो, पूरी से सेटिंग तो नहीं कर लिया ना तुम? नहीं, देखो, ऐसी बात। देखो तुम्हारी शराफत की ना लोग खस्मा खाते। तुम मस्जिद पे आते, तुम जमात से नमाज पढ़ते, भूरी जैसी बला को ना घर के पास आने नहीं देना, समझे? ये रमजान के बाद जो शाबान आ रहा है ना, उसमें तुम्हारी शादी तय कर देंगे। जकिया से शादी करने का है, इसको देखो अच्छी तरह। मैं कल आके बात करती हूँ पूरी। सो बात कर ली मैं जकिया के घर वाले से, ठीक है? ठीक है। समोसे मैं ले जाती हूँ, तुम क्या करते? आपको देती हूँ मैं नंबर, जिसको भी होना ले लो मेरे से नंबर जी। शौकत जी। जी? ये क्या है? जी? कहा था ना मुझे पूरी फिटिंग चाहिए। ये देखिए ढीला हो गया, और ये गला हो गया, छोटा है। गले की ज्वेलरी कैसे नजर आएगी अगर गला छोटा होगा तो? अब मैं क्या करूंगी? कितने प्यार से जोड़ा लाई थी, हमने सारा बर्बाद कर दिया। आप तहम्मुल से काम ले, रोए मत, मैं अभी एक सिलाई लगा देता हूँ, बिल्कुल फिट हो जाएगा। कैसे? अभी तो मायूं में जा रही हूँ ना, सब लड़कियां आ चुकी हैं वहाँ। अब ये ढीला चोगा पहन को तो चोकर लगेगी उर्जुमाइल। आप ये कमीज मुझे उतार कर दे। वो अंदर गुसल खाने में जाकर मुझे एक कमीज दे दे, मैं भी सिलाई लगा दूंगा। हीरो भी कहाँ मर गया कमबख्त। बारिश, अगर लाइट चली गई तो ये
ऑफर भी हाथ से जाएगी। और शुमाइल वे आजा हीरो। कुछ सोच। रास्ता कहाँ से? आप क्यों आ रहे पीछे पीछे? कमीज कौन ला कर देगा? हाँ ये भी है, चले। जल्दी ले, 2 मिनट में ला कर दे मुझे फौरन। जी 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 बस 1 मिनट। लीजिए लीजिए। उस्ताद आज शटर डाउन हड़ताल है, बोला भी था तुमको, तुम सुनते कहाँ हो? अब कम वक्त ये क्या कर रहे हैं? जल्दी से अंदर घर में चिपके बैठ जाओ, मैं बाहर से ताला लगा रही हूँ। सुन तो अंदर, वो मेरी बात सुन। आज एक दिन अंदर नमाज पढ़ लोगे तो क्या हिंदू हो जाओगे? तू समझ नहीं गया? तुम्हारे साथ अंदर बंद हो जाता। देख लीजिए शकील भाई, सुबह से बंद है कारोबार, चेक कर ले। ये हुई ना बात। आपको ये ऐसी फिटिंग लाकर दिखाए तो सही मोहल्ले में। मोहल्ले में क्या, फिल्मों में नहीं है। हाय कहीं मेरा मेकअप खराब ना हो जाए। वो कमीने कहीं मेरे बिना ही डांस ना शुरू कर दे। कौन सा गाना था? तू गड्डी बिग बैन थी, पूरा लंदन ठुमकदा। आपको क्या हुआ? सॉरी, ओ मैं जब एंग्री होती हूँ तो थोड़ी थोड़ी सी मैड भी हो जाती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ बाय। सॉरी, अल्लाह हाफिज। ये शटर किसने बंद किया है? आप बाहर नहीं जा सकती। कुत्ते कमीने वैसे हरामी, मुझे पता था इस दाढ़ी के पीछे तुम झूठे मुल्ला कमीने। खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। मैंने तुमने ही किसी से कहकर बाहर का दरवाजा बंद करवाया होगा, है ना? तुम झूठे हरामजादे कुत्ते कमीने। आप ये वाहियात ज़बान मेरे घर में इस्तेमाल ना करें। जहाँ अम्मा मरूमा तहज्जुद पढ़ा करती थी। हाय हाय, अम्मा मरूमा और बेटे से विलन वाले काम कर रहा है। खोलो दरवाजा झूठे मुल्ला। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो बाहर हड़ताल वालों ने शटर डाउन कराया और कराया। झूठ, सब झूठ। देखो मौलाना शौकत, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। जल्दी खोलो दरवाजा। हाँ हाँ, मेरे साथ बड़े मीठे मीठे बन रहे थे तुम, है ना? और ये सिलाई के पैसे भी नहीं लिए। तुम सालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। साले कुत्ते होते हैं। कुत्ते क्या भेड़िए होते हैं। देखें, आप ये वाहियात ज़बान मेरे घर में इस्तेमाल ना करें, वरना आपको वहाँ पाखाने में ले जाके बंद कर दूंगा मैं। बाथरूम कहते हैं। जो भी हो वही, क्योंकि आप बहुत ही गंदी जुबान बोलती है। मेरा पर्स ला कर दो फौरन। कोई ना कोई मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा। मैं किसी को फोन करती हूँ। मेरा पर्स ला कर दो। पीछे बाथरूम की तरफ, जल्दी ला कर दो मेरा पर्स। अरे बाथरूम में है, मेरा पर्स ला कर दो। कहाँ फंस गई मैं? अल्लाह अल्लाह, क्या होगा क्या होगा अब, क्या होगा? अरे ये नहीं है भाई, इसमें नहीं है। नहीं, मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। किसी काम के नहीं है आप शौकत साहब, कुछ नहीं होता आपसे। अजीब पागल बना के रखा हुआ है मुझे। एक तो कमीज ठीक से नहीं सी कर दी मेरी, ऊपर से पर्स भी नहीं ढूंढ के दे रहे आप। कोई काम के नहीं है आप। आपसे बस ना कपड़े सिलवा लें और कुछ नहीं होता आपसे। पर्स मेरा। हेलो 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 हेलो, सबीना का था, दुल्हन का। तो आप कर लें। हाँ हेलो हेलो, बैलेंस खत्म हो गया। अपना फोन दे मुझे जरा। मेरा? हाँ मेरे पास क्या? मैं मोबाइल फोन नहीं रखता। है? मोबाइल फोन नहीं रखते? फिर झूठ। मौलाना शौकत, मैं बता रही हूँ मैं बहुत बुरी लड़की हूँ।
फटाफट फोन निकालो आवारा आदमी। मैं झूठा नहीं हूँ, मोहल्ले में किसी से भी पूछ लो, मैं ये मोबाइल जैसे खुराफात रखता ही नहीं। अमरीश पूरी कहीं के। तुमने और ये लैंडलाइन, ये तो कब का कट गया। अम्मा मरहुमा इस्तेमाल किया करती थी। अम्मा मरहुमा के साथ आप भी क्यों नहीं चले गए? खुद ही ने फोन का तार काट दिया होगा। पुरानी फिल्मों में ऐसा ही होता था। फिल्में कम देखा करें, हकीकी जिंदगी कुछ और चीज है। कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। अल्लाह मेरी जान पे बनी हुई आपको नमाज पढ़ने की लगी हुई है। मैं नमाज कभी कज़ा नहीं करता। अल्लाह मैं क्या करूं? वहाँ तो मायूं भी शुरू हो गई होगी। सलमा शग्गू बेबी सबके सब मुर्दार हैं। हराम है कि एक कमी नहीं मुझे फोन कर ले। अल्लाह हीरो को फोन करती हूँ ना, वो भी वहाँ है, वो आकर मुझे ले जाएगा। वहाँ तो उसको सब जानते भी हैं। हाँ हीरो क्या हुआ? बैलेंस खत्म हो गया, आखिरी वाला भी चूस लिया मैंने। अल्लाह मैं क्या करूं? सही कहती हूँ अबली खाला, मैं हुई मनूस। पैदा हुई तो अम्मा को खा गई, अब्बा घर छोड़कर भाग गए, कोई नहीं है मेरा। वो अकमल साहब है ना? हाँ अकमल है ना, है अकमल। अल्लाह मुझे तो भूख भी इतनी लग रही है। मैंने पता सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वहाँ पर ना बकरे की बिरयानी बनने वाली थी, पेप्सी भी होगी। किस मनूस का मुंह देख लिया था सुबह सुबह। बबली खाला का ही तो देखा था, उनसे बड़ा मनूस कौन है इस दुनिया में। कहाँ जा रहे हैं आप नमाज पढ़ने? नहीं, बावर्ची खाने में। या अल्लाह, किस घड़ी में महबूब की आरज़ू की थी मैंने। तूने तो कबूल कर ली परवरदिगार, लेकिन इस तरह से। अब रोऊं या हंसूं समझ में नहीं आ रहा। चल अब जल्दी से हड़ताल खत्म हो और ये मुसीबत जाए यहाँ से। किन लकड़ियों पे खाना बनाते हैं शौकत जी? वो गली बंद की है ना टायर जलाकर, तो उसी का धुआं है। बिरयानी हाय कहाँ से आई? वो जी कल अम्मा मरहुमा की बरसी थी तो मैं। तेरी अब्बास और से मंगवाई होगी ना, स्टूडेंट की है ना भाई? जी नहीं, मैंने बनाई है। फिर झूठ। और कौन रहता है यहाँ पे? बीवी नजर नहीं आ रही आपकी? मैं क्या मैं? बच्चे भी नहीं दिख रहे। रायता दे, रायता कहाँ है? मैं अकेला रहता हूँ, शादी नहीं की। फिर झूठ। कितने साल के? 50? नहीं तो 35। पचास से ऊपर के हो। चलो तलाक दे दी होगी, या हो सकता है कि उसी ने ले ली हो। तुम किसी काम के नहीं लगते। अच्छा ना शौकत जी, आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। बोतल होती तो मजा आ जाता। वाह शौकत जी, आप ये शौक भी रखते हैं? वो हीरो पीता है, कभी कभार उसके लिए ले आता हूँ। मेरा है ही कौन उसके सिवा। बर्फ नहीं चलेगी? दौड़ेगी। मजा आ गया। चले।
सचमुच नमाज पढ़ने लगे? हुर्शमाइल, तुम्हें अकेले घर में रखकर कोई नमाज भी पढ़ सकता है? हाँ? या अल्लाह मुझे माफ फरमा, एक ना समझ और एक ना महरम लड़की को घर में रखा है मैंने, मुझे माफ फरमा दे। तू दिलों का हाल जानता है, तू ये भी जानता है कि मेरी नीयत सच्ची है। उसे इसलिए रोक रखा है कि उसकी जान और मेरी इज्जत सलामत रहे। या अल्लाह मुझे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शौकत जी, मैं सोई नहीं हूँ, मैं जरा आंख लग गई थी। ऐसी काफिर बिरयानी खाकर तो ना गधे को भी नींद आ जाए। बैठ जाए। आपके पास फोन, मेरा फोन कहाँ गया? अरे अभी यहीं तो रखा, मैं ऊपर बैठ गई थी। उछल उछल के शायद कपूर बना हुआ होगा कमीना। इतने फोन ने मेरा शोर में सुनेगा भी कैसे फोन? इतना सस्ता सा तो मोबाइल रखा हुआ उसने। आपके पास सचमुच मोबाइल नहीं है? बैठ जाए, आपका अपना घर है। मुझे मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं। जिसको मुझसे बात करनी है वो दुकान पर आ जाता है या फिर घर पर। अच्छा, आप यहाँ आराम से सो जाएं, लाइट बंद कर लें और वो दरवाजा भी। मैं जरा जल्दी सो जाता हूँ, शब बखैर। अरे अजीब आदमी है शौकत जी। मैं तो सुबह अजान सुनकर नमाज पढ़ती हैं? सोती हूँ सुबह 5 बजे। वो असल में ना फ्री कार्ड और SMS का पैकेज ले रखा है ना। आज तो आपका फोन बंद है, सो ही जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ बैठ जाए और मुझसे बातें करें जब तक मुझे नींद ना आ जाए, बल्कि बाहर चले सहन तक आ जाए। अरे वाह, आपने तो घर बड़ा साफ सुथरा सजा कर रखा हुआ है। मुझे ना चंपा और चमेली के फूल बहुत पसंद हैं। वहां गिरे हुए देखे थे, उठा लूं? हाँ हाँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। मासी बड़ा अच्छा काम करती है। कितने पैसे लेती है? वो मैं सब सफाई खुद करता हूँ। आप चाय नहीं पीते रात को? जी नहीं, मुझे चाय पीकर नींद नहीं आती, मगर आपके लिए एक कप बना देता हूँ। एक नहीं 2 बनाइएगा, क्योंकि आपको भी तो मेरे साथ जागना है ना। लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी काश ये रात भर यहीं रहे, बल्कि जिंदगी भर गली के लड़के यूं ही पहरा देते रहे और हीरो का मोबाइल कहीं खो जाए और हूर शुमाइल हमेशा के लिए यहाँ बसेरा कर ले भी आए शौकत जी, चाय बन गई। ये लीजिए, ये थोड़ी खीर भी है। अरे वाह। आप गाती बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है। और ना मेरे पास ना गानों की पूरी डायरी है। आशा के, लता के, शादी ब्याह के, नूरजहां के सारे गाने आते हैं मुझे। मैं वायु में नहीं गई तो क्या हुआ? हम यहाँ अपनी पार्टी करते। हाँ? ये रहा। हाँ, और राधा तेरी चुनरी और राधा तेरा चलना और राधा तेरी नटखट नजर।
पाकिस्तानी ठुमरी ठुमरी। अभी आप गा रही थी ना वो लठ उलझी सुल। क्या चक्कर है मौलाना? इस घर में ये घुंघरू कहाँ से आए? ये घुंघरू क्या कह रहे हैं? ये घुंघरू किसके हैं ये घुंघरू? हाँ नेपियर उठ के किसी कबाड़िए से लिए होंगे ना है ना? आपकी तबीयत ठीक है? ये पेट में गड़बड़ है? हाँ नहीं वो उस खीर में कुछ था शायद, खाते ही निकल गई। जरूर इस खीर में ही होगा कुछ। तौबा, मुझे देनी नहीं चाहिए थी खीर आपको। वो मेरा पर्स और पानी दे दें, दवा खानी है। ये मैं पानी लाता हूँ मैं। शुक्रिया। खामखा मेरी वजह से आप यहाँ फंस गई। ना मैं कमीज झीली सी था ना ये होता। आपकी सहेलियां आपका इंतजार कर करके थक गई होंगी। इंतजार कमबख्त बड़ी बुरी चीज है। हाँ वो अकमल साहब। ना मत लो उस कमीने का मेरे सामने। जब से लेडीज जिम स्टार्ट किया है ना, दिमाग ही नहीं मिल रहा है। वहां पे अब डिफेंस की लड़कियां भी तो आने लगी है ना, सब इंग्लिश बोलती हैं। इंग्लिश क्या, बस इंग्लिश नखरे। उनको जानबूझ के एक्सरसाइज सिखाते हैं। मिस ऐसे, मिस ऐसे। कमीना, अब तो मैं उसको जैसे नजर ही नहीं आती, किसी बगैर वेट की चूंटी की तरह। ओह, अफसोस हुआ। खैर मेरे पास ही बहुत पड़े हैं। फैसल है, कॉल सेंटर में जॉब करता है, बाइक भी है उसके पास। फिर अनीस है, हाँ, और जरा भद्दा सा है, मोटा सा। लेकिन तो क्या हुआ, आल्टो है उसके पास, बड़े स्पीकर वाला डेक भी है गाड़ी में। आज वही तो आने वाला था माइयों में। ओहो, वैसे आप किसका इंतजार कर रहे हैं जिंदगी में? मैं? नहीं तो। अच्छा, पर अभी तो आप कह रहे थे कि इंतजार बड़ी बुरी चीज है। हाँ बस आप अच्छे आदमी हैं, जैसा कि आदमी को होना चाहिए, और लोगों जैसे नहीं हैं। सॉरी, मैंने भी आपको उन लोगों जैसा समझ लिया। छोड़े, दिखाएं मुझे। अरे ये, इनको तो मैं जानती हूँ। इनकी ना एक तलाक हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छी है ज़किया बाजी, और बेचारी ना बड़ी दुखी है। आपके घर में कौन कौन रहता है? अम्मी, अब्बा, भाई, बहन? भाई बहन? उनका तो पता नहीं कौन होते हैं, कैसे होते हैं। बबली खाला ना मेरी अम्मा की कजन है, उन्होंने ही पाल लिया जैसे तैसे। वो पार्लर चलाती है ना,
वो है ना वो स्टॉप के पास वो बड़ा वाला दुल्हन पार्लर। अच्छा अच्छा। और फिर क्या अम्मा को तो मैं ऐसे ही चट कर गई बकौल सारे खानदान वालों के। आप बताएं, क्या कोई अपना नसीब खुद बनाता है? और अगर बनाता भी है तो क्या वो अपनी माँ को खा जाने के मंसूबे ऊपर से बनाकर ला सकता है? बताएं। नहीं, गलत है ये बात। अच्छा फिर क्या, बबली खाला यहाँ लोटपोट की बड़ी हो गई। पहले एक मामू के माले में 5वीं तक पढ़ लिया, फिर दूसरे के पास मैट्रिक कर लिया, बस। आगे आगे पढ़िए ना आप, अभी तुम है पढ़ने की। रहने दे, मैं ना पार्लर में काम करती थी खाला के साथ, वहां ना मेरी लड़ाइयाँ हो गई। तो फिर घर पर रहें, मतलब घरदारी करें, सीना पिरोना। घर पर 3 कुत्ते हैं। बाप रे, कुत्ते? 3 कुत्ते? आप डर गए? कुत्ते मतलब मेरे 3 कजन, मुस्तंडे चरसी, जो हर वक्त मेरे लिए लड़ते मरते रहते हैं। अब आप बताएं, इसमें क्या घरदारी और क्या पढ़ाई हो? कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, या फिर इस दुनिया से। नहीं नहीं। हाँ, मैं घर छोड़ के जहां भी जाऊंगी वो दुनिया बबली खाला के घर से बुरी तो नहीं होगी ना, या होगी? और अगर खुदकुशी कर भी ली तो सीधा दोज़ख में। तो शौकत जी, दोज़ख में तो मैं अभी भी रह रही हूँ। मुझे फिर भूख लग गई। मैं आपके लिए 1 कप चाय और बना सकता हूँ। हाँ। बाहर मामला ठंडा हो गया है, आप चाहें तो अब जा सकती हैं। अच्छा, लेकिन बाहर गली का दरवाजा तो हीरो ने बाहर से बंद कर दिया था ना? हाँ। देखता हूँ, शायद खोल गया हो। हाँ। या अल्लाह, हीरो ने दरवाजा ना बंद किया, मेरी छोटी सी दुआ कबूल। यही तो मैं हैरान हूँ कि अंदर तो आपने सारा बुटीक खोल रखा है। ये सारे जोड़े कितने प्यारे हैं, महंगे महंगे, और ये कमीज, ये तो बिल्कुल मेरे नाप की है। कितनी प्यारी है। आपकी चॉइस तो A1 है शौकत जी। ये सब क्या? मेरे ख्वाब हैं। ये ख्वाब है? झूठे? मैं झूठ नहीं बोलता। आप ख्वाब देखती हैं कोई हाँ, खास? देखती हूँ ना। मेरा ख्वाब है कि मैं एक छोटे से प्यारे से घर की मालकिन हूँ, बल्कि मलिका। मैं उसे खुद झाड़ूं, पोछूं, खूब सजाऊं प्यार से। बबली खाला का घर ना बहुत गंदा है, बहुत ही ज्यादा। काई आती है, बदबू। आप इन जोड़ों की एग्जीबिशन करवाएंगे, बताए ना? ये सब? हाँ। बस ऑर्डर है किसी का। अच्छा, ये भी? ये तो दुल्हन का है।
कबूल है। हाँ ये भी, इसे रख दीजिए, चाय का धब्बा लग जाएगा। ये आपने मेरी कमीज ऐसे क्यों पहनाई है? दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी। सारा कसूर इस कमीज का ही है। आज जरूर इसे ले जाना। ये लो और सारा सामान उठाओ अपना और जाओ यहाँ से, और खुदा के वास्ते आइंदा कभी मत आना। आऊंगी, बार बार आऊंगी। हूर शुमाइल किसी के रोब में नहीं आती। मैं कहता हूं जाओ, दरवाजा खुला है। अभी अंधेरा है, अजान होने से जरा देर पहले निकल जाऊंगी। तुम्हारी कौन सी मोहल्ले में इज्जत है? मेरी तो नहीं है, मगर आपकी तो है शौकत जी। एहतराम है, मैं ऐसे ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? एक ही रात में, एक ही लम्हे में। आपकी बीवी बड़ी नसीबों वाली होगी। काश हम अपना नसीब खुद बनाते शौकी जी, काश। जान से प्यारे अकमल। ना तुम खत का जवाब दे रहे हो, ना तुम फोन उठा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम तो कहते थे कि तुम मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करोगे, लेकिन अब तुम्हें डिफेंस की हर लड़की से प्यार हो रहा है। देखो, मैं तुम्हें ये खत नहीं लिखती, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। लेडी डॉक्टर कहती है कि सफाई हो जाएगी, लेकिन 30,000 का खर्चा है। तुम मुझसे शादी नहीं करते तो न सही, लेकिन कम से कम पैसे तो दे दो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी हूर शुमाइल। तकवे तकवे पतलाए लकवे, बिल्ली तेरी अख सचना आ। तकवे तक उसाद, इतना मजा आया मायों में। शेषता और मैंने बहुत डांस किया, लेकिन कल ऊरबाजी आई नहीं। सुन रहे हो उसाद? हाँ, एक मिस कॉल आई थी उनकी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। शायद डेट पर होंगी। हाँ, डेट पर ही तो थी। हमने साथ खाना खाया, बातें की, इधर उधर घूमे, गाना गाया। यही तो डेट होती है ना, या प्यार की एक मुलाकात। बस शेषता और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं प्राइवेट पढ़ूंगा और बीए का इम्तिहान करते ही उससे शादी कर लूंगा। तब तक अम्मा भी मान जाएंगी। अच्छा 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 है। पिछले कपड़े सी दिए थे तुमने? हाँ साथ सब काम हो गया। और वो पहुंचाए लोगों तक? हाँ, उर्बाजी को भी जोड़ा दे आया। पैसे तो वो कह रहे थे अगले महीने ले लीजिएगा, हिसाब में सलाम लिख लीजिए। शौकत जी। उर्बाजी कल कहाँ गायब थी? वो
उग्रवा जी, ओसाद की शादी की डेट तय हो गई है 26 जुलाई। मुबारकबाद तो दो। मुबारक हो शौकी जी। क्या क्या आप मेरे साथ निकाह फरमाएंगे? क्या कह रहे हो साथ? साथ तुम तो बड़े छुपे रुस्तुम निकले।